Next, we are going to start here the physiology of the autonomic nervous system, right? So, before we go into the details of the autonomic physiology, first we should know a little bit about the autonomic anatomy, right? Uh, which neuron is coming from which part of the brain, right? So, first we should know the location of some neurons, from where those neurons are going to be originate from, right? Okay. So, first we will start with the nervous system, right? We already know nervous system. So, if we uh, classify the nervous system. Nervous system, as people already know, is classified into two subtypes. Nervous system. First one is the central nervous system. First one is the central nervous system. Right? Central nervous system and peripheral nervous system. And peripheral nervous system. Peripheral nervous system. Right? Peripheral. Okay, I will explain it later. Okay, now central nervous system is further again subdivided into two types. Two types, as you people know, brain, and second one is the spinal cord. And the spinal cord. Right? Okay. Peripheral nervous system is further subdivided into autonomic nervous system, as we call it ANS, and somatic and somatic nervous system, SNS. SNS is the somatic nervous system, right? Okay. Then this here, because we are concerned here with the autonomic nervous system, not other systems. So we will break down the autonomic nervous system further into its subdivisions, right? So autonomic nervous system is further subdivided into uh, three subdivisions, as you people already know. Uh, Parasympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, then sympathetic nervous system, and then enteric nervous system. Like the enteric nervous system, right? So here we are concerned here with the autonomic nervous system and subdivisions of the autonomic nervous system, and especially the first two divisions, parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system, right? Okay. Here in the diagram, you people can see. It's important now. The things are going to start from here, right? Okay, as you people can see here in this diagram, this portion is brain. This portion is brain. First portion. First portion is brain. This is brain, right? And the lower portion is spinal cord, right? ये यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेन है, ठीक है? फिर उससे नीचे यहाँ से आके यहाँ तक क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से आके यहाँ तक क्या है? स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, राइट? ओके। And in the spinal cord, you people know there are different regions. There are different regions. Let's go, for example, cervical region that basically contributes from C1 to C7, right? Then there is thoracic region that accounts from E1 to T12, E1 to 12. Then basically starts lumbar region. Then basically starts lumbar region, L1 to L5, L1 to L5. Then sacral region starts. Then at the end, the region is
sacral region, that is S1 to S5, right? Okay. Now listen and remember. Now come downward. As we will know that there are two systems here. Parasympathetic, parasympathetic, sympathetic nervous system. And second one is sympathetic nervous system. Second one is the sympathetic nervous system. Right? Okay. Listen and remember. As you people can see here in this diagram, this portion is brain, right? And this portion is spinal cord, right? And in spinal cord there are different regions that starts from the C1 to S5, right? Okay. अब जो पैरासिम्पैथेटिक nervous system, this parasympathetic nervous system uh, consists of craniosacral region, cranio cranio craniosacral region, as we can say cranial cranial plus plus sacral region plus sacral region, right? And if we talk about the sympathetic nervous system, it consists of, or it counts thoracolumbar, thoracolumbar, right? क्या मतलब है कि जो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरॉन्स जो है वो यहाँ से निकलेंगे और सैक्रल रीजन से निकलेंगे उसके न्यूरॉन, किसके? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? क्रेनियो सैक्रल, मतलब कुछ इसके न्यूरॉन ब्रेन के रीजन से निकलते हैं और कुछ कहाँ से निकलते हैं? ये जो लास्ट पोर्शन है ये वाला, ये सैक्रल, यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ये कह सकते हैं कि ये क्रेनियल वाला रीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सर्विकल वाला रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं ये थोरेसिक वाला रीजन है। फिर हम ये कहते हैं कि ये लंबर वाला रीजन है, और ये फिर हम कहते हैं ये सैक्रल रीजन है। ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसके न्यूरॉन इस वाले रीजन से ये वाला, ये, और इस वाले रीजन से निकलेंगे ये वाला। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियो सैक्रल रीजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, every time it is asked in the Bible question, right? And sympathetic nervous system consists of thoracolumbar. What does it mean by this? It its neurons, the neurons of sympathetic nervous system are going to be originated from this portion, but this portion consists of thoracic region and lumbar region. So that's why the neurons of the sympathetic nervous system are thoracolumbar neurons. The neurons that are going to be coming from the thoracic and lumbar region, right? Okay. Now come towards another point. As you people can see here in this diagram, this is the cranial region and the neurons are coming from here, right? And this is the sacral region and the neuron also coming from here, right? And here is the ganglia. Here is the ganglia. ये ganglia है, ठीक है। इस गैंग्लिया से पहले वाला जो पोर्शन है न्यूरॉन का, उसको हम क्या कहते हैं? पेरी गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, बिकॉज दिस इज द गैंग्लिया, दिस इज द गैंग्लिया, दिस इज द गैंग्लिया, राइट? ओके, द न्यूरॉन विच इज बिफोर द गैंग्लिया इज प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। इसको हम क्या बोलते हैं? प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। क्या है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर? और इधर भी सेम है क्योंकि ये क्रीनियो सैकल है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, right? And the neurons those are coming to be after the ganglia are the post-ganglionic neuron. Are the post-ganglionic neuron. For example, these neurons. These are the post, because these are after the ganglia. Post
पोस्ट ganglionic nerve fiber, right? Same is the case here with the sacral as well. Post ganglionic ganglionic nerve fiber, right? जो गैंग्लिया से पहले वाले फाइबर है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, और जो गैंग्लिया के बाद वाले फाइबर है, दीज आर दी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। सेम केस विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये इसके क्या हो जाएंगे, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये थोरैको लंबर के न्यूरॉन है। कौन सा थोरैको लंबर के, ये सुन, ये वाला क्वेश्चन, थोरैको लंबर, these are the pre-ganglionic nerve fiber and these are the post-ganglionic nerve fiber, right? And here is the difference, क्या डिफरेंस है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो क्या है, लॉन्ग है, दे आर दी लॉन्ग फाइबर, दे आर दी लॉन्ग फाइबर, right? and and fiber and the fiber after the ganglia are short, they are the short fiber, right? In case of parasympathetic nervous system, okay, as you people can see, in case of sympathetic, which is thoracolumbar portion, the preganglionic fibers are short, preganglionic fibers are short, and the postganglionic fibers are long, right? Okay, next, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो गैंग्लिया में क्या होगा, अब आपका फॉर एग्जांपल इफ आई से पैरासिम्पैथेटिक nervous system is active, it means that the nerve impulse is coming from here in the from brain and then into the preganglionic fiber, right? And here will be the neurotransmitter release। आपको पता है यहाँ पे हम ऑलरेडी इस तरह की चीजें डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ मसल फिजियोलॉजी। ठीक है, यहाँ से फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना वो एसिटाइलकोलिन होता है गैंग्लिया के अंदर, कहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, राइट? फिर वो उसके रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे, किसकी, एसिटाइलकोलिन के, फिर वो यहाँ से बाइंड होती है यहाँ पे एसिटाइलकोलिन, और फिर यहाँ से सिग्नल जनरेट होता है आगे पोस्ट गैंग्लियन नर्व फाइबर में, और फिर यहाँ पे फिर वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है, और फिर यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे फिर एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है। जब यहाँ पे फिर एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, देन देयर इज द ऑर्गन, देन देयर इज द ऑर्गन, और जिसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टर ऑर्गन, दिस इज ऑर्गन, राइट? ये क्या है, इफेक्टर ऑर्गन। और इस इफेक्टर ऑर्गन में, इस इफेक्टर ऑर्गन में कोई भी ऑर्गन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट हो सकता है, कोई भी हमारा ऑर्गन, इस तरह हमारी आईज हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह हमारे लंग्स हो सकते हैं, राइट? दोनों केसेस में गैंग्लिया के अंदर भी और इफेक्टर ऑर्गन से पहले भी दोनों जगह पे क्या रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन, एट बोथ प्लेसेस, एट बोथ प्लेसेस द एसिटाइलकोलिन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड, राइट? फिर क्या होगा, अब ये सारा जो इफेक्ट होगा वो जाहिर सी बात रिसेप्टर्स के थ्रू होगा, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मस्करीनिक रिसेप्टर, मस्करीनिक एंड निकोटिनिक, मस्करीनिक एंड निकोटिनिक, right? And as you will already know, there are again different types: M1, M2, M3, and M4, M4, then M5. In case of nicotinic, there are two types: N M receptor and N receptor. And M receptor we have studied in case of muscle physiology, right? And M receptor are basically these receptors that I have shown you here. These are, और इनको क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स।
इसको क्या बोलते हैं? निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। राइट, ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द अदर पार्ट। मतलब क्या है कि जो इफेक्टर ऑर्गन होगा उसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर होंगे, या तो निकोटिनिक हो सकते हैं या वो मस्कुलिनिक हो सकते हैं। मस्कुलिनिक में M1 M2 M3 M4 M5 होंगे, और जो निकोटिनिक है उसमें फिर जो है वो इफेक्टर ऑर्गन में तो आपको पता है एक ही होगा, मसल होगा, और जो न्यूरॉन है वो इधर ही होगा, न्यूरॉन। एन एन का क्या मतलब है? न्यूरॉन, न्यूरॉन ये देखो, ये न्यूरॉन न्यूरॉन के दरमियान रिसेप्टर है। ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पे जो है ये है एन एन रिसेप्टर, और जो बस जो एन एन है वो हमने मसल फिजियोलॉजी में देखे थे, वो जो निकोटिनिक एसिटाइल रिसेप्टर थे। दोनों टाइप्स हैं निकोटिनिक एसिटाइल रिसेप्टर। जो न्यूरॉन न्यूरॉन के दरमियान है वो एन एन हो जाएंगे, जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान थे वो क्या हो जाएंगे? एन एम हो जाएंगे, राइट। नाउ कम टुवर्ड्स, दिस वाज अबाउट द parasympathetic nervous system, right? So if we talk about the sympathetic nervous system, we talk about the sympathetic nervous system, again impulse is coming from here। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, राइट। और फिर वो सेम अपने निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को यहाँ पे एक्टिवेट करेगी, फिर यहाँ पे सिग्नल जनरेट, इंपल्स जनरेट होगी, राइट। यहाँ पे फिर क्या होगा? इंपल्स जनरेट होगी, और फिर यहाँ पे फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा ना वो होगा नॉर एपिनेफ्रिन। वो क्या होगा? नॉर एपिनेफ्रिन। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, द second neurotransmitter is acetylcholine, but in case of sympathetic nervous system the second neurotransmitter is norepinephrine, is norepinephrine। अब गौर से सुनो, तीन जगह पर एसिटाइल कोलिन है, एक जगह पर नॉरेपिनेफ्रिन। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, फिर आप लोग देखो यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन है, और सिस्टम कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक। अब अब हमारी सिंथेटिक, सिंथेटिक में गैंग्लिया के अंदर भी क्या है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। लेकिन जो इफेक्टर ऑर्गन होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या होगा? इफेक्टर ऑर्गन, उसके लिए जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर होगा वो होगा नॉरेपिनेफ्रिन। मतलब क्या होगा? हमारे पास देयर आर फोर पोजीशंस, एट थ्री पोजीशन देयर इज एसिटाइल कोलिन, एट वन पोजीशन देयर इज नॉरेपिनेफ्रिन, राइट, ओके। अब हम आ जाते हैं सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि थोरैकोलम्बर कहलाता है। इसके जो रिसेप्टर हैं उनको हम कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो क्या कहते हैं? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, राइट, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स, राइट। In case of alpha receptor, there are two subtypes, alpha 1 and alpha 2, right? In case of beta, there are three subtypes of beta receptors. They are very important. You people have to remember these receptors: beta 1, beta 2, and beta 3. And you people already know this alpha 1 receptor is linked with GQ system, right? And this alpha 2 is linked with the GI system. You people already know these concepts. And these all beta receptors are linked with the GS system, right? Okay, next. As listen, next is the exception। क्या मतलब है? As we already know कि जो गैंगली होते हैं वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है, जैसे कि यहाँ पर हमें पता है इस पॉइंट पे क्या होता है? एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है, राइट। फिर हमें पता है कि इस पॉइंट के ऊपर भी दैट इज द सिनैप्स बिटवीन न्यूरॉन एंड इफेक्टर ऑर्गन, वो भी क्या है? वो भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है, राइट। फिर हमें पता है सिम्पथेटिक सिस्टम में, ये अभी हम पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है गैंग्लिया के अंदर, और एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन के दरमियान। फिर उसके बाद सिम्पथेटिक सिस्टम में दैट इज गोइंग टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम थैलेकोलम्बर रीजन, ऑलरेडी यू नो। वहाँ पे भी गैंग्लिया के अंदर क्या रिलीज होती है? एसिटाइलकोलिन। और फिर उसके इफेक्टर ऑर्गन और जो न्यूरॉन है उसके दरमियान नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है, राइट। फिर कुछ एक्सेप्शन है, क्या? वो एक्सेप्शन ये है कि स- कुछ ऑर्गन्स में, गौर से सुनना आप लोगों ने, क्या है? कुछ ऑर्गन्स में है वो क्या? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है क्या? ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? क्या? कि है तो सिम्पथेटिक सिस्टम का, इसको नॉर्मली तो यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करें नहीं, लेकिन ये क्या रिलीज करता है? एसिटाइल कोलिन। ये क्या रिलीज करता है? एसिटाइल कोलिन। लेकिन वो कौन से स्पेशल ऑर्गन है? वो दो किस्म के स्पेशल ऑर्गन कौन कौन से? यू पीपल हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स एज वेल। कौन कौन से जी वो एक जो है हमारे पास, अ, पहले है हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स, और वो कौन सी ब्लड वेसल हैं? वो हैं स्केलेटल ब्लड वेसल, स्केलेटल जो मसल है उनकी ब्लड वेसल, स्केलेटल की, स्केलेटल ब्लड वेसल। और कुछ ग्लैंड्स, क्या है? कुछ ग्लैंड्स
ठीक है, और उन ग्लैंड में से भी हमारे पास कौन से हैं? स्वेट ग्लैंड। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने याद रखना। वैसे तो आपको नॉर्मली जनरल रूल क्या है, यहाँ पे नॉरेपिनेफ्रिन जैसे कि इस केस में है, लेकिन ये कुछ ऑर्गन्स के अंदर ये एक्सेप्शन है कि वहां पे है तो सिंपथेटिक फाइबर, लेकिन रिलीज क्या करता है? एसिटाइलकोलिन। ये एक पहली एक्सेप्शन है। दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शन, यू पीपल हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, अब एक और एक्सेप्शन आने लगे, दिस इज सेकंड नंबर एक्सेप्शन। अब ये देखो, आप लोग ये वाला जो न्यूरॉन है, दिस न्यूरॉन, ये पिंक कलर का न्यूरॉन, दिस पिंक न्यूरॉन इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम thoracolumbar region and it is not going to form any ganglia। गौर से बात याद रखनी है कि ये एक सिंपथेटिक न्यूरॉन है, और दिस न्यूरॉन इज नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी गैंग्लिया। जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखो, ये न्यूरॉन बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकल के और डायरेक्ट ऑर्गन के अंदर जा रहा है। डायरेक्ट किधर जा रहा है? ऑर्गन के अंदर। और ये है कौन सा? है सिंपथेटिक न्यूरॉन। ये क्या है? इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी गैंग्लिया एंड इट इज ओनली अ सिंगल फाइबर। इट इज ओनली अ सिंगल फाइबर एंड दिस फाइबर इज बेसिकली गोज इनटू द एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल adrenal gland, right? And in the adrenal gland, आपको पता है there are different regions of the adrenal gland। ये बाहर वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन जो होता है इसका, इसको क्या, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है। और ये जो अंदर वाला आप लोगों को नजर आ रहा है, जिसके अंदर मैं ये डॉट्स बना रहा हूँ, दिस पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला एंड दिस पोर्शन, एड्रिनल मेडुला, तो क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला, इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, राइट, ओके। अब जब, अच्छा, अब ये है क्या? एक सिंगल सिम्पथेटिक फाइबर है एंड लिसन, इट रिलीजेस एसिटाइलकोलिन। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर से सीधा घुसता है ये वाला न्यूरॉन, और कहाँ पे? एड्रिनल मेडुला के अंदर जाता है। यहाँ पे देखो, एड्रिनल मेडुला के अंदर। एंड लिसन एंड रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सेड दैट एंड इट इज रिटन इन द बुक्स, क्या, कि ये जो एड्रिनल मेडुला है, इट इज बेसिकली अ बंच ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। क्या है ये? क्या है वो? बेसिकली इसको क्या कहते हैं? इट इज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये। ठीक है। और जब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है ये वाला न्यूरॉन, दैट इज ऑल द वे कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इट रिलीजेस हियर एसिटाइलकोलिन। दिस एसिटाइलकोलिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ सम न्यूरोनल टिश्यूज। ये न्यूरॉन के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो कि रिलीज क्या करते हैं यहाँ पे? दोज आर गोइंग टू रिलीज हियर द टू न्यूरोट्रांसमीटर्स, टू न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं? एंड दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर हियर एड्रेनालिन, 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 इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? नॉर नॉर एड्रेनालिन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। और इन दोनों में से एक क्या है? एपिनेफ्रिन, और दूसरी क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन, और यू कैन से एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन एक एड्रेनालिन है, एक क्या है? एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन। और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? नॉर एड्रेनालिन। ठीक है। जिसको नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ठीक है। और इनमें से जो एड्रेनालिन है, दैट इज गोइंग टू बी 80%। एड्रेनालिन कितनी होती है? 80%। ठीक है। और जो नॉर एपिनेफ्रिन है, नॉर एड्रेनालिन है, वो कितनी है? 20%। यहाँ से रिलीज होती है। अच्छा, अब ये दोनों रिलीज हो के यहाँ से जाती किधर है बेसिकली? ये यहाँ पे जाती हैं ब्लड के अंदर। किधर जाती है? ब्लड के अंदर। ये ब्लड वेसल यहाँ से रिलीज होती है एड्रेनल मेडुला से, और ये जाती किधर? ब्लड वेसल के अंदर। ये जाती है ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे। और ये यहाँ से ब्लड के थ्रू डिफरेंट इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचती है। किधर? इफेक्टर ऑर्गन। और फिर वहां भी एक्टिविटी परफॉर्म करती है, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचती है। ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन है, ये आप लोगों ने क्या रखनी है? याद रखनी है कि एक तो कुछ जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि स्केलेटल मसल के हैं, स्केलेटल मसल ब्लड वेसल के हैं, और ग्लैंड के जो कि स्वेट ग्लैंड के हैं, वो वहां पे इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन दे आर गोइंग टू रिलीज एसिटाइलकोलिन, राइट? एंड सेकंड एक्सेप्शन इज दैट the one neuron all the way coming from the thoracolumbar region of the spinal cord is going to be innervated directly into the adrenal gland and especially into the adrenal medulla where it is going to release acetylcholine, and this acetylcholine is going to cause the release of two neurotransmitters. First one is adrenaline, the other one is noradrenaline. Adrenaline is going to be 80% and noradrenaline is going to be 20%, goes into the blood vessels, and through this, the blood, they are going to reach their effector organ. These are two exceptions from where the normal rule
is not going to be followed. Instead, there is change in the release of neurotransmitter. As you can see, acetylcholine है तो ये sympathetic fibers इनको norepinephrine release करनी चाहिए, but in these two places, instead of releasing norepinephrine, these two neurotransmitters are going to release acetylcholine, right? Okay, next point है, as you people know, this is parasympathetic nervous system and here is the sympathetic nervous system. Here is the sympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system is also known as the system of rest and digest. We will already know this phenomena as well. The system of rest and digest. Which means that कि जब हम रेस्ट में होते हैं, which means that कि जब हम लोग रेस्ट में होते हैं, this system is dominant on the multiple organs of our body. This system is dominant when we are in the rest or digest. जब हम बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए हैं और हम खाना शाना खा रहे हैं, so this system is dominant. That is parasympathetic, which is coming from the craniosacral region of the spinal cord and brain. Right? Okay. Next क्या है? Sympathetic, and this sympathetic nervous system is known as the system of fight and flight. Fight and flight. Why this system is going to be called so? Because in sympathetic nervous system, when we are in stress, when we are in fear, when we are going to have a fight with somebody, we have a dominant sympathetic nervous system. We have a dominant sympathetic nervous system. And when we are in the flight, means when we are at upper place, जब हम किसी ऊपर वाली जगह पर हो, तो वहां पे भी ये वाला सिस्टम डोमिनेट कर जाता है, because the things or the normal ecosystem is going to be changed in that situation. For example, if somebody is going into the hilly areas, वहां पे भी ये change हो जाएगा. And somebody is going to in the flight, ठीक है, अगर वो ऊपर हवा में जा रहा है जहाज, वहां पे समटाइम वो फील करता है देयर इज समथिंग फेरी, ठीक है, तो उस टाइम हमारा जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज द structure of it. It is very important. If we go into the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, first we should know a little bit about the structure of eye, because many things are related to the eye in the sympathetic and parasympathetic nervous system, right? First we should know things related to eye, right? So quickly you will have to follow me. First I am going to discuss the layers of the eye, right? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है? फाइब्रस ट्यूनिक. इसमें क्या आती है? स्क्लेरा. और दूसरी क्या है? कॉर्निया. दूसरी क्या है? कॉर्निया. फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा लेयर कौन सी है? वेस्कुलर ट्यूनिक. उसके दूसरी वाली कौन सी है? वेस्कुलर ट्यूनिक. ये भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ. अभी अभी आप लोग ये देखोगे ये क्या है? वेस्कुलर ट्यूनिक. क्या है? वेस्कुलर ट्यूनिक, जिसमें तीन चीजें, आयरस आता है उसके अंदर सिलरी बॉडी आती है, ठीक है, जिसके अंदर सिलरी प्रोसेसेस हैं और कोरॉइड का पोर्शन. और क्या है? कोरॉइड का पोर्शन है. फिर उसके बाद सेंसरी ट्यूनिक है. उसके बाद क्या है? सेंसरी ट्यूनिक. और फिर इसके अंदर जो है ना वो रेटिनल लेयर है. रेटिनल लेयर के अंदर एक न्यूरोनल लेयर है और एक एपिथेलियल लेयर है, राइट? ओके, अब इस डायग्राम के अंदर आ जाए आप वेरी क्विकली. अब सबसे पहले आप लोग ये वाली लेयर देख रहे हैं, ये सबसे बाहर जो है, ये जो कि फाइब्रस ट्यूनिक है. ये क्या है? फाइब्रस ट्यूनिक. अब ये देखो यहाँ पे ये स्क्लेरा है, यहाँ तक ये स्क्लेरा है, ठीक है, इधर से भी यहाँ तक ये. फिर उसके बाद ये आगे वाली जो रेड नजर आ रही है आप लोग, ये रेड वाला, ये वाला पोर्शन, ये दिस पोर्शन, दिस इज बेसिकली द कॉर्निया. ये कॉर्निया है, ठीक है, ये दोनों बाहर वाली है. फिर उसके बाद अंदर वाली आ जाओ, ये ग्रीन, दिस ग्रीन, ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली जो है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोइड. ग्रीन वाली को क्या बोलते हैं? क्रोइड, ठीक है. क्रोइड ये यहाँ तक है, ग्रीन वाली यहाँ तक, क्रोइड ये वाली. फिर उसके बाद इसके बाद ये वाला पोर्शन फुल ग्रीन वाला शो हो जाता है, ये वाला पोर्शन जो कि आप लोगों को हैंड की तरह नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है. तो इससे पहले ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? सिलरी मसल या सिलरी बॉडी. ये पूरी हाथ की तरह की जो है ना, ये सिलरी बॉडी है. क्या? सिलरी बॉडी. फिर इसका डिफरेंट पोर्शन है. ये ये वाला जो पोर्शन है, ये आगे ये वाला, इसको हम बोलते हैं सिलरी प्रोसेसेस, ठीक है. फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सिलरी एपिथेलियम. और ये जो पीछे वाला है ये है सिलियरस. तो क्या बोलते हैं? सिलियरस. ये पीछे वाला पोर्शन सिलियरस है. ये आगे वाला ये क्या है? सिलरी एपिथेलियम है. और ये क्या है? सिलरी प्रोसेस. ठीक हो गया. और फिर आगे ये है जो है ना वो रेटिनल लेयर, जिसके अंदर न्यूरोनल लेयर है और एपिथेलियल लेयर है. वी आर नॉट मेजरली इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस लेयर. ठीक हो गया. अब आप लोग इधर आ गए, ठीक है. अब ये देखिए, ये आपको ये जो अंदर एक ये वाली डायग्राम नजर आ रही है. दिस इज द लेंस, दिस इज द लेंस, एंड दिस लेंस ऑफ आई इज अटैच्ड विद दिस पोर्शन ऑफ द सिलरी बॉडी. आपको पता है ये पूरी सिलरी बॉडी है, ये पूरी क्या है? सिलरी बॉडी है. और ये जो लेंस है ये सिलरी बॉडी सिलरी, अच्छा, जो सिलरी बॉडी है ना, इसके तीन पोर्शन है. एक सिलरी मसल है, ये वाला पोर्शन,
तो ये सिलरी एपिथेलियम है और ये सिलरी प्रोसेस है। ठीक है, ओके। अब जो लेंस है वो सिलरी मसल के साथ, देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये सिलरी मसल है, ये इसको ये शो कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये सिलरी मसल है। ये क्या है? सिलरी मसल। और ये जो लेंस है ये सिलरी मसल के साथ अटैच है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ये जो ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सिलरी मसल को अटैच किया हुआ है किसके साथ? लेंस के साथ, दोनों साइड में, इधर भी है इधर भी है। इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स। दीज आर दी सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये आप लोगों को ये दरमियान में एक एरिया नजर आ रहा है, ये दिस इज द होल एरिया, और यू कैन से फ्री एरिया। ये होल है एक किस्म। और इस होल को हम क्या बोलते हैं? प्यूपल। इस होल को क्या बोलते हैं? प्यूपल। और ये जो प्यूपिल है ये बेसिकली आइरस से मिलकर बना है। ये देखो, ये आइरस है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आइरस है। दैट इज एक्चुअली द सिलरी प्रोसेस, एक्चुअली द सिलरी प्रोसेस। तो जब ये मैं आप लोगों को ना एक साइड दिखा रहा हूँ आई की, तो जब ये पूरी कंप्लीट होती है ना, तो ये सर्कल पूरा बन जाता है इसमें, और ये अंदर वाला पोर्शन खाली रह जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ये आइरस है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द सिलरी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यू पीपल हैव गॉट द पॉइंट। अब उसके बाद ये देखो, ये आप लोग ये बताइए सिलरी एपिथेलियम है। और आप लोग जानते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में? आप लोग इसके बारे में जानते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? सिलरी एपिथेलियम से बनता है। ये देखो, ये सिलरी एपिथेलियम है, ये क्या है? सिलरी एपिथेलियम। और ये जो सिलरी एपिथेलियम है, ये वाला पोर्शन, ये क्या बनाता है? एक्वस ह्यूमर। दिस सिलरी एपिथेलियम बेसिकली मेक्स एक्वस ह्यूमर। क्या बनाता है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। क्या? कौन? सिलरी एपिथेलियम। सिलरी एपिथेलियम। ठीक है, फिर ये सामने आप लोगों को कॉर्निया नजर आ रहा है, राइट? अच्छा, अब लिसन, ये जो एक्वस ह्यूमर है, क्या है? एक्वस ह्यूमर, इट इज गोइंग टू बी फाउंड फ्रॉम सिलरी एपिथेलियम। ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो हाथ की तरह का एक पोर्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ से क्या बन गया? ये सिलरी एपिथेलियम है, और यहाँ से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन शुरू होती है, और ये यहाँ से गुजरता हुआ ऐसे इस एरिया में है। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस पोर्शन, पहले आप लोग कुछ और चीजें समझो। ठीक है, वो कौन सी है? एक मिनट। अब ये देखो आप लोग, पहले आप लोगों को ये एक पोर्शन नजर आ रहा है, कौन सा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? लेंस से लेके और रेटिनल लेयर तक। कहाँ से? लेंस से लेके रेटिनल लेयर तक है ये। फिर उसके बाद आप लोग देखो, लेंस से लेके और कॉर्निया तक एक पोर्शन है, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर सेगमेंट। ये देखो, ये देखो, ये एंटीरियर सेगमेंट है। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये वाला पोर्शन सारा एंटीरियर सेगमेंट है। लेंस से लेके कहाँ तक? लेंस से लेके कॉर्निया, ये देखो, ये कॉर्निया। लेंस से लेके कहाँ तक है? कॉर्निया तक। लेंस से लेके कॉर्निया तक। लेंस से लेके कॉर्निया तक क्या है? एंटीरियर सेगमेंट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा खामोश हो जाता हूँ, ये चीजें मैंने मिटानी होगी इसीलिए। ओके, तो ये पहले दो सेगमेंट है, लेंस के पीछे और लेंस के आगे। लेंस के पीछे वाला पोर्शन क्या है? पोस्टीरियर सेगमेंट। और लेंस से आगे वाला पोर्शन क्या है? एंटीरियर सेगमेंट, क्योंकि वो एंटीरियर होता है आगे वाला, पोस्टीरियर होता है पीछे वाला। अब जो एंटीरियर सेगमेंट है उसको भी फिर हमने दो में चेंज किया हुआ है, और वो फिर चैम्बर बन जाता है। कौन सा? अब देखो, एक लेंस और आइरस के दरमियान वाला पोर्शन है, देखो ये वाला, यहाँ तक, जिसको मैंने क्या शो किया हुआ है, ये देखो, ये येलो वाला पोस्टीरियर चैम्बर है ये। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर है। और फिर एक आइरस और कॉर्निया के दरमियान ये वाला पोर्शन है, इसे क्या बोलते हैं? एंटीरियर चैम्बर। एक सेगमेंट है, एक चैम्बर है। एक पीछे वाला सेगमेंट है, एक आगे वाला सेगमेंट है। आगे वाले सेगमेंट को एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं। इसको फिर आगे दो में डिवाइड करते हैं, एक एंटीरियर चैम्बर है और एक क्या है? पोस्टीरियर चैम्बर। लेंस और आइरस के दरमियान, ये देखो, ये आइरस वाला पोर्शन है। लेंस और आइरस के दरमियान इतने वाला पोर्शन क्या है? ये वाला, दैट इज बेसिकली पोस्टीरियर चैम्बर। फिर उसके बाद आइरस और कॉर्निया के दरमियान वाला पोर्शन क्या है? एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, तो अब आओ जरा इधर। ये जो सिलरी एपिथेलियम है, ये यहाँ से एक्वस ह्यूमर को बनाता है, और ये सबसे पहले किधर जाता है? पोस्टीरियर चैम्बर। देखो आपको बताइए, ये सारा पोस्टीरियर चैम्बर है, इधर आता है। और फिर ये गुजरता कहाँ से है? प्यूपल से गुजरता है। कहाँ से? प्यूपल से गुजरता हुआ किधर चला जाता है? एंटीरियर चैम्बर में, क्योंकि आपको बताइए एंटीरियर चैम्बर है ये वाला। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर में जाता है, और एंटीरियर चैम्बर से फिर किधर जाता है? ट्रेबेक्युलर मैशवर्क। ये देखो, ये नीचे आगे नजर आ रहा है, ये एक बेसिकली, ये जो है ना वो पाथवे है, एक है पाथवे।
ये देखो ये एक्वस ह्यूमर आ रहा है, जो जो आपको एरोस नजर आ रहे हैं ना, ये एक्वस ह्यूमर की का पाथवे है। दिस इज द पाथवे ऑफ एक्वस ह्यूमर, दिस इज द पाथवे ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो बनता कहाँ से, सिल्वी एपिथेलियम में, फिर किधर जाता है, पोस्टीरियर चैम्बर में, फिर वो प्यूपल से गुजरता है, प्यूपल से गुजरते हुए फिर एंटीरियर चैम्बर में आता है, एंटीरियर चैम्बर से फिर किधर जाता है, ट्रेबैक्यूलर मैशवर, किधर जाता है, ट्रेबैक्यूलर मैशवर, ट्रेबैक्यूलर मैशवर से फिर किधर जाता है, कैनाल ऑफ शेलम। ये इसके बाद फिर आपको ये एक कनाल नजर आती है आगे, ये कैनाल ऑफ शिलाम में चला जाता है, ये देखो ये नीचे। और कैनाल ऑफ शिलाम से फिर किधर चला जाता है, वेनस ड्रेनेज के अंदर चला जाता है, किधर चला जाता है, वेनस ड्रेनेज के अंदर चला जाता है। तो ये एक्वस ह्यूमर का पाथवे है, ये किसका पाथवे है, एक्वस ह्यूमर का। कहाँ से बनता है, सिल्वी एपिथेलियम से, फिर किधर जाता है, पोस्टीरियर चैम्बर में, फिर ट्यूबल से गुजरता है, फिर एंटीरियर चैम्बर में आता है, फिर ट्रेबैक्यूलर मैशवर्क। ये क्या है, ट्रेबैक्यूलर मैशवर्क। और ये जो ट्रेबैक्यूलर मैशवर्क है, ये सिलरी मसल, आपको पता है ये सिलरी मसल है पीछे वाले, ये वाले, ये सिलरी मसल के बिल्कुल पीछे होते हैं, क्या, ट्रेबैक्यूलर मैशवर्क। इधर ट्रेबैक्यूलर मैश बिल्कुल सिलरी जो मसल है उसके पीछे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात यहाँ पे, ये जो सिलरी मसल है ना, सिलरी मसल, इनका एक और भी नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीलियरिस। दूसरा नाम क्या था, सीलियरस, दूसरा नाम क्या है, सीलियरस। किसका, ये जो सिलरी मसल है इनका, सीलियरिस, दूसरा नाम क्या है, सीलियरस। तो ये था आई का स्ट्रक्चर, ये आप लोगों ने याद रखना है, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। Next, as we were discussing about the structure of thyroid in our lecture, first I will repeat the structure as we were on layers हैं। सबसे पहले फाइब्रस ट्यूनिक है, फिर उसके बाद उसकी दो लेयर्स हैं, स्क्लेरा सबसे आउटर कॉर्निया है वो एंटीरियर साइड पर है, फिर वास्कुलर ट्यूनिक है, ठीक है। अ, इसके अंदर फिर तीन चीज़ें आती हैं, आयरस आता है, सिलरी बॉडी आती है, सिलरी बॉडी के अंदर मतलब तीन चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्रोइड है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंसरी ट्यूनिक है, सेंसरी ट्यूनिक में रेटिनल लेयर है, और रेटिनल लेयर की दो लेयर है, न्यूरल लेयर है और एपिथेलियम। बाकी ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। स्क्लेरा आउटर वाली, कॉर्निया सबसे आगे वाली, ठीक है। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार दोबारा इसको देख लें, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखी थी, जैसे जो है वो चैम्बर्स को देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने आयरस को देखा, फिर हमने प्यूपल को देखा दिया, ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज बेसिकली प्यूपिल, ठीक है। और ये जो आयरस है, ये जो आयरस, इसी आयरस के अंदर बेसिकली मसल्स होते हैं, इसी आयरस के अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, दो किस्म के, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखो आयरस जो है वो, जब हम देखो, जब आप इसको जब आप इस आई की स्ट्रक्चर को सामने से देखेंगे, ठीक है, तो हमें ये आयरस पूरा इस तरह गोल गोल फॉर्म में नजर आएगा ऐसे, क्योंकि अभी तो हम साइड से देख रहे हैं ना, तो हमें इस तरह ये ओपनिंग ऐसे नजर आ रही है, राइट। लेकिन जैसे ही हम इसको जो है वो सामने से देखेंगे, ठीक है, तो हमें ऐसे करके नजर आएगा, इस तरह सर्कुलर आयरस ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे दो किस्म के मसल पाए जाते हैं, ठीक है। उनको हम आज हम डिस्कस करेंगे। ये देखो नेक्स्ट इधर आ जाओ। अब ये देखो, जब हम लोग सामने से देखेंगे, और से देखो, इस डायग्राम को हमने ऊपर वाले डायग्राम से कंपेयर भी करके चलना है। ये देखो एंटीरियर व्यू, मतलब जब हम सामने से आंख को देखेंगे, जब हम कहाँ से देखेंगे, सामने से, तो हमें सबसे पहले ये देखो, ये एंटीरियर चैम्बर था जिसको हमने कल देखा था, ये देखो ये एंटीरियर चैम्बर है, दिस वन इज द एंटीरियर चैम्बर। ये वाला पोर्शन, ये एंटीरियर चैम्बर है, ये वाला पोर्शन, ये इसको मैं ये ऐसे कर दूं, ये एंटीरियर चैम्बर आप लोग देख सकते हैं, ये देखो ये, ठीक है। और एंटीरियर जो चैम्बर है उसके सामने से हम देखेंगे, ये देखो ये जो ये प्यूपिल है ना, प्यूपिल है क्या, बेसिकली ओपनिंग है ये, प्यूपिल इज एन ओपनिंग, जहाँ से लाइट पास होती है, ठीक है। और प्यूपिल बनता किससे है, आयरस से, ठीक है। प्यूपिल इज नथिंग बट ओपनिंग, आयरस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू एक्चुअली फॉर्म द प्यूपिल, ठीक है। तो इस आयरस के अंदर फिर जो है ना दो किस्म की मसल है, राइट। जब हम इंटीरियर व्यू में देखेंगे, तो मसल कौन कौन से हैं, एक ये है, एक कहते हैं सर्कुलर मसल, एक कहते हैं, एक और भी नाम है, ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों ने इतने याद रखने, सर्कुलर मसल, ठीक है, और डायलेटर मसल, दो किस्म के मसल है जो कि पाए किधर जाते हैं, आयरस के अंदर। और ये देखो, ये इसी एंटीरियर व्यू के अंदर आप लोगों को ये प्यूपल नजर आ रहा है, ठीक है। और ये प्यूपल क्या ओपनिंग है, और इसके इर्द गिर्द ये आपको दो किस्म के मसल नजर आ रहे हैं, कैसे, इधर देखें यार, एक इससे सर्कुलर किस्म के ऐसे, जो कि डार्क ग्रीन है, जो कि क्या है, डार्क ग्रीन, ये अंदर वाला ये सर्कल, दिस सर्कल, दिस सर्कल इज बेसिकली सर्कुलर मसल, ये क्या है, सर्कुलर मसल्स, ठीक हो गया। और फिर आपको ये वाले नजर आ रहे हैं इस तरह, ऐसे, इस फॉर्म में ऐसे, ये देखिए ऐसे करके नजर आ रहे हैं, देखो मतलब क्या हुआ, ऐसे सर्कुलर मसल है, सर्कल की फॉर्म में ऐसे, और फिर इनके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर, यस, इनके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर ऐसे डायलेटर मसल है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। अब गौर से सुना आप लोग,
मसल्स। ठीक है, अब आप गौर से सुने। जो सर्कुलर मसल है ना, उनके ऊपर होते हैं M3 रिसेप्टर्स। गौर से ये बात याद सुनिए आप लोगों ने, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सर्कुलर मसल है उनके ऊपर M3 रिसेप्टर है, और इसके ऊपर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कंट्रोल होता है। ठीक है, और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसके ऊपर आके एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर। और नाउ हियर इज द इफेक्टर ऑर्गन इज द आई, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन क्या है, हमारा आई है। तो यहाँ पे इसको, जो सर्कुलर मसल है उनको कौन कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब इसके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आके एक्टिवेट करता है इनको M3 रिसेप्टर को। अब बताया M3 रिसेप्टर GQ सिस्टम के साथ लिंक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स। तो अब आपको पता है GQ सिस्टम ऑन होगा तो स्मूथ मसल है ये जो सर्कुलर मसल है ये स्मूथ मसल है, और इनके ऊपर M3 रिसेप्टर है। जब ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है M3 रिसेप्टर को, और पैरासिम्पैथेटिक रिलीज क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन, ऑलरेडी यू नो दिस। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, कौन से सर्कुलर मसल, ये देखो ये वाले, जो कि सर्कुलर फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने ध्यान से बैठे, मैंने आप लोगों से सवाल पूछी। आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल एंड यू पीपल हैव टू रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज यू पीपल कैन। ठीक है, अच्छा। तो जो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर जो है वो डोमिनेंट होगा, पैरासिम्पैथेटिक, वो M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो जो सर्कुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सर्कुलर मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर पहले वो ऐसे पड़े थे ऐसे, तो वो और छोटे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, क्योंकि वो क्या कर गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वो कॉन्ट्रैक्शन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, मायोसिस। उस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मायोसिस बोलते हैं उस कॉन्ट्रैक्शन को, जो कि कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन। ये मैं बार बार चीज रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने इनको समझना है। एसिटाइलकोलिन M3 को एक्टिवेट करेगा, M3 आगे सर्कुलर मसल को एक्टिवेट करके उनको क्या करवा दे, कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो प्यूपल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब उसको क्या बोलते हैं, प्यूपल, क्योंकि आपको पता है ये प्यूपल है, ये बेसिकली जो होल है। तो जब होल के ऊपर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो छोटे होते हैं तो प्यूपल का साइज भी छोटा हो जाता है, क्योंकि प्यूपल किससे बनता है, ये आयरस से, और आयरस के अंदर ही बेसिकली सर्कुलर मसल है और डायलेटर मसल है। सर्कुलर मसल है और डायलेटर मसल है। ठीक है, अब जब डायलेटर मसल के ऊपर क्या है, अल्फा वन रिसेप्टर, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है अल्फा वन। अल्फा वन जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से एक्टिवेट होते हैं। अल्फा वन किससे, सिंपैथेटिक। और जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो अल्फा वन रिसेप्टर है वो GQ सिस्टम के साथ लेंगे, वो भी GQ सिस्टम के साथ लेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, देखो अभी मैंने आपको दिखाया कि सर्कुलर मसल गोल है ऐसे। ठीक है, और डायलेटर मसल इनके ऊपर होते हैं ऐसे। फर्क है दोनों में, दोनों की डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, ये दोनों की सॉरी प्लेसमेंट में फर्क है। ये 90 डिग्री के ऊपर पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब सर्कुलर मसल, जो कि ये वाले हैं अंदर वाले सर्कुलर, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बिल्कुल से छोटा होता है, छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो और स्क्वीज हो जाते हैं सर्कुलर मसल। लेकिन जब ये जो डायलेटर है जिनके ऊपर अल्फा वन रिसेप्टर है, डायलेटर जिनके ऊपर क्या है अल्फा वन, ये भी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पीछे की तरफ मूव करते हैं। किधर मूव करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे, क्योंकि ये इस साइड से ये अटैच है, लेकिन इस साइड से किसी भी चीज के साथ अटैच नहीं है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे मूव करते हैं पीछे की तरफ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करके पीछे की तरफ मूव करते हैं तो जो प्यूपल का साइज होता है वो बढ़ जाता है। किस केस में, सिंपैथेटिक सिस्टम की केस, किस केस में, इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम द प्यूपल साइज बिकम्स इंक्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेड्रियासिस। जिसको हम क्या बोलते हैं, मेड्रियासिस। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि जो आई में जो दो किस्म के मसल हैं, सर्कुलर मसल और डायलेटर मसल। सर्कुलर मसल के ऊपर M3 रिसेप्टर्स हैं, और जो डायलेटर मसल हैं जो कि 90 डिग्री के ऊपर पड़े हैं उनके ऊपर अल्फा वन रिसेप्टर है। सर्कुलर मसल के ऊपर M3 रिसेप्टर मौजूद है, डायलेटर के मसल अल्फा वन रिसेप्टर मौजूद है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में M3 के ऊपर जब एक्टिवेशन होती है एसिटाइलकोलिन से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उससे प्यूपल का साइज क्या हो जाता है, कम, जिसको क्या बोलते हैं, मायोसिस। क्या यहाँ में प्यूपल साइज डिक्रीज हो जाता है, प्यूपल का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। लेकिन जैसे ही डायलेटर मसल के ऊपर अल्फा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो, और उसमें जो अल्फा वन रिसेप्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब है मसल की कॉन्ट्रैक्शन। और कौन सी मसल है, ये डायलेटर और M3, सॉरी सर्कुलर, सर्कुलर के ऊपर M3 और डायलेटर के ऊपर अल्फा वन। ठीक है, होते दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन जो सर्कुलर है वो मतलब स्क्वीज हो जाते हैं, और जो डायलेटर है होते वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन प्यूपल जो होता है वो उसका साइज बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेट्रियासिस। जिसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रियासिस। तो ये इफेक्ट था प्यूपल साइज के ऊपर। ये इफेक्ट किसके ऊपर था, प्यूपिल साइज, प्यूपिल साइज, राइट। अब नीचे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर चैम्बर में। ठीक है, इसमें पोस्टीरियर चैम्बर में ये देखो, ये पोस्टीरियर ये वाला चैम्बर है। ठीक है, और आपको पता है इसमें ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये वाले जिनको मैं ब्लैक शो कर रहा हूँ, सस्पेंसरी लिगामेंट्स दोनों साइडों से ये अटैच है किसके साथ, सिलरी मसल या सिलियरस के साथ अटैच है ये। ठीक है, तो ये अब ये इस शक्ल में ये दिखाया हुआ है पोस्टीरियर चैम्बर। ये जो
ऑरेंज कलर वाला सर्कल है ये बेसिकली सिलरी मसल को दिखाया हुआ, और सिलरी मसल के साथ क्या अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, राइट। अब ये जो सिलरी मसल है ना, इसी के ऊपर दो किस्म के रिसेप्टर हैं, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक में M3 रिसेप्टर है, और सिम्पथेटिक सिस्टम में क्या कौन से रिसेप्टर्स है, बीटा 2 रिसेप्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से बैठना आप लोग, जो M3 रिसेप्टर है वो पैरासिम्पथेटिक के अंडर है। M3 रिसेप्टर किसके अंडर है, पैरासिम्पथेटिक के। और जो सिम्पथेटिक सिस्टम है वो जो है वो किसको एक्टिवेट करता है, बीटा 2 रिसेप्टर को, जो कि मौजूद कितने हैं, सिलरी मसल के ऊपर। कहाँ पर वो सिलरी मसल, अब हम जरा इधर से देखें कौन से हैं सिलरी मसल, तो ये वाले सिलरी मसल है, ये वाले, ये यहाँ पे ये, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो M3 रिसेप्टर्स भी हैं, यहाँ पे क्या M3 रिसेप्टर्स भी हैं, और यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स भी हैं, यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स, राइट, इधर। अब इसी को ना आगे वाली शक्ल में ऐसे शो किया हुआ है हमने, मतलब ये वो तो साइड वाला व्यू है। अब ये सामने से अगर हम देखें तो ऐसे नजर आएगा, सिलरी मसल होंगे, ठीक है, उसके साथ सस्पेंसिव लिगामेंट्स है जिन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ है, जिसमें क्या पकड़ा हुआ, लेंस। और ये अंदर ये जो ब्लू शक्ल है ये लेंस है, ये जो ब्लू है अंदर ये लेंस है, दिस ब्लू डायग्राम इज लेंस, ये ब्लू डायग्राम है लेंस है, ठीक हो गया। अब गौर से बैठे, ये नीचे वाले डायग्राम में आ गया। अच्छा, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लेंस का जो लेंस के ऊपर जो सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक का इफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन, ठीक हो गया। तो दो सिस्टम है, एक पैरासिम्पथेटिक का है और एक है सिम्पथेटिक का, ठीक हो गया। अब जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है आपको पता है, उसमें अभी पता है M3 रिसेप्टर्स है। जब हम रेस्ट में हैं, जब हमें कोई फाइट और फ्लाइट सिचुएशन नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक डोमिनेट होता है, हमें पता है रेस्ट और डाइजेस्ट में पैरासिम्पथेटिक डोमिनेट होता है, तो वो M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। M3 रिसेप्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल, या ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिलरी मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अभी एक बार इधर से देख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। सिलरी मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, बट जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो और लेंस क्या हो जाते हैं, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और लेंस उससे क्या हो जाता है, ग्लोब्यूलर और थिक हो जाता है। ये वाली डायग्राम में देखें आप लोग, ये जो ये वाली डायग्राम है ये नॉर्मल पे पहले खड़ा है, ठीक है। तो जब M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की वजह से, ठीक है, तो लेंस क्या हो जाता है, ग्लोब्यूलर ठीक हो जाता है, और हम नियर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम जो है वो कोई खौफ नहीं है, तो हम चाहते हैं हम आराम से रिलैक्स होकर नज़दीक की चीज़ों को आराम से देखें, तो हम अकोमोडेट हो जाते हैं नियर विजन के लिए। क्या होता है, हम अकोमोडेट हो जाते हैं नियर विजन के लिए। अब इधर से इधर हम देखें, देखें और से, ये देखो ये M3 रिसेप्टर यहाँ पे और यह पैरासिम्पथेटिक के अंडर है, और जब ये एक्टिवेट होती है ना, तो ये जो सिलरी मसल है, ये जो सिलरी मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे आगे की तरफ मूव करते हैं, ऐसे, ऐसे आगे की तरफ। और देखो आप लोग देखो, अगर लेंस ऐसे मूव करें, क्यों, क्योंकि मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इसको करवा रहे हैं M3, जो कि M3 यहाँ पर है, तो आप लोग देखें कि इस साइड पे मूवमेंट होगी, ऐसे, ऐसे मूवमेंट होगी, इस साइड पे ऐसे, इस साइड पे मूवमेंट होगी एंटीरियर साइड पे। और जब एंटीरियर साइड में मूवमेंट होगी ना, तो क्या होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो रिलैक्स हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। जब ये जो सिलरी मसल है जब ये ऐसे मूव करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये रिलैक्स करते हैं तो ये पीछे की तरफ मूव करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आप लोग जरा टेक्सचर में देखो, आप लोग जरा टेक्सचर में देखो कि आई का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जब ये जो सिलरी मसल जब आगे की तरफ मूव करते हैं ना, तो सस्पेंसिव लिगामेंट्स, ये जो सस्पेंसिव लिगामेंट्स हैं ये ढीले हो जाते हैं। लेकिन जब ये रिलैक्स करते हैं, पीछे की तरफ मूव करते हैं, ऐसे जाहिर सी बात है, जब इन्हें रिलैक्स करते हैं इन्हें पीछे की तरफ मूव करना है, ऐसे, ये ऐसे पीछे की तरफ मूव करते हैं, ऐसे। तो जाहिर सी बात है, जब देखो आप टेक्सचर आएगा इस तरह का है कि जैसे ही ये सस्पेंसिव लिगामेंट ऐसे की तरफ इस साइड पे धकेले जाएंगे ऐसे, तो देखो लेंस जरा इधर आ जाएगा आगे, इस साइड पे, और ये जरा इसके अंदर खिंचाव आ जाएगा, इस लेंस के अंदर क्या आ जाएगा, खिंचाव, जिसको हम क्या बोलते हैं कि लेंस हो गया फ्लैट। क्या हो गया, फ्लैट। तो देखो सिम्पथेटिक सिस्टम में क्या कह रहा है कि वहां पे बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द सिलरी मसल, बट सस्पेंसरी लिगामेंट्स के अंदर क्या होती है, टेंशन आ जाती है, क्योंकि वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या सिलरी मसल जो पीछे की तरफ मूव करते हैं, किस साइड पे, कौन सी पीछे वाली साइड का मतलब है, मतलब ये है कि ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे। तो देखो ये यहाँ पे चीजें दूर जा रही हैं, आई का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि मसल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जब ये दूर जाएंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, लेंस फ्लैट हो जाएगा, लेंस के अंदर खिंचाव आ जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, खिंचाव, तो लेंस फ्लैट हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैट, लेंस फ्लैट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, और ये किस सिचुएशन में होता है, जब हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा चीजों को देख सकें, जब हम चाहते हैं, जाहिर सी बात है, जब लेंस, अब देखो ये देखो ये है जी ये है सिंपथेटिक सिचुएशन, जिसमें लेंस आपको बड़ा नजर आ रहा है, ये देखें, और ये है सिंपथेटिक सिचुएशन जिसमें लेंस आपको छोटा नजर आ रहा है, तो किस किस सिचुएशन के अंदर आप इस लेंस में से ज्यादा रेज पास होंगी, देखो जाहिर सी बात है, सिंपथेटिक सिस्टम भाई, हमें फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में हमारे पीछे जो है ना वो डॉग है, हम भाग रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें कुत्ता बड़ा नजर आए, हमें डॉग बड़ा नजर आए, ताकि हम उसको अगेंस्ट फाइट कर सकें, तो उसके लिए लेंस क्या होगा, बड़ा होगा,
ताकि उसमें ज्यादा रेस घुसे और ज्यादा बड़ी चीजें हमें नजर आए। लेकिन जब हम रेस्ट में हैं तो हमारा लेंस क्या है, छोटा ग्लोब्यूलर है। हम नहीं चाहते हमें चीजें बड़ी नजर आए, लेकिन हमें चीजें पूरी पूरी नजर आए, राइट। तो इससे क्या होगा, जब लेंस फ्लैट हो जाएगा तो हमें चीजें क्या हो जाएगी, बड़ी नजर आएंगी। लेंस फ्लैट हो जाएगा तो हमें चीजें क्या होगी, बड़ी नजर आएंगी। बेशक आप लोग इस डायग्राम में भी देखें, इस डायग्राम में भी, तो ये सिलरी मसल है, ये वाले देखिए, ये सिलरी मसल है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर M3 रिसेप्टर है। ठीक है, और बीटा 2 रिसेप्टर देखो इस शक्ल में जाहिर किया हुआ है। ठीक है, तो जब M3 रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं तो ये इस साइड में मूव करता है, देखो ऐसे, इस साइड ऐसे। जाहिर सी बात है, जब इस साइड में मूव करता है तो लेंस क्या हो जाता है, छोटा। क्यों? क्योंकि जो सस्पेंसिव लिगामेंट्स है ना, वो उनके अंदर टेंशन कम हो जाती है, और लेंस क्या हो जाता है, ग्लोब्यूलर। लेंस क्या हो जाता है, ग्लोब्यूलर। लेकिन जैसे ही ये बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये ऐसे मूव करता है, इस साइड में ऐसे, इस शक्ल में मूव करते हैं। जाहिर सी बात है, इस शक्ल में मूव करते हैं तो ये सस्पेंसिव लिगामेंट्स जो है वो उनकी तरह टेंशन आ जाती है, मतलब वो स्ट्रेच हो जाती है। जब वो स्ट्रेच होते हैं तो वो लेंस को बड़ा कर देते हैं, जिसके जैसे कि आप इस शक्ल में बड़ा कर देते हैं। यस, तो लेंस क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो जो लेंस का बड़ा होना है वो बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से, क्योंकि उस टाइम सिल्ली मसल रिलैक्स करते हैं और ये ऐसे मूव करता है और टेंशन आ जाती है सस्पेंसिव लिगामेंट्स में, लेंस बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये चीजें इस साइड में मूव करती हैं, पीछे की तरफ। तो सस्पेंसिव लिगामेंट्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और जो लेंथ होता है वो ग्लोबुलर हो जाता है। और ये किस केस में होता है, पैरासिम्पथेटिक केस में। और जो सिम्पथेटिक केस में है वो लेंस फ्लैट, मतलब सिम्पथेटिक सिस्टम के केस में जब हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में है तो लेंस क्या हो जाएगा, बड़ा, ताकि हमें बड़ी चीजें ज्यादा नजर आए। लेकिन जब हम रेस्ट में हैं तो हम चाहते हैं कि हमें चीजें जो है ना वो सही सही नजर आए। अच्छा, तो जब हम पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, जब हम रेस्ट और डाइजेस्ट में हैं तो हमारी अकोमोडेशन जो है ना वो नियर वेन के लिए होती है। हमें करीब की चीजें आसानी से नजर आती हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें दूर की चीजें, क्योंकि हम उस टाइम बिल्कुल रेस्ट में हैं। लेकिन जैसे ही सिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस टाइम हमारी अकोमोडेशन क्या हो जाती है, फॉर वीएन के लिए। क्यों? क्योंकि अब लेंस फ्लैट हो चुका है, अब हम ज्यादा चीजें दूर से देख सकते हैं, क्योंकि लेंस के अंदर से अब ज्यादा रेज पास हो सकती है। जब ज्यादा चीजें रेज पास होंगी तो फिर क्या होगा, अ, हमें चीजें और ज्यादा बड़ी नजर आएंगी, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है, हम सबसे पहले पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। Parasympathetic nervous system, as you people know, is the system of rest and digest, and its neurons are coming from cranial and sacral region of the brain and spinal cord. And the receptors of the parasympathetic nervous system are cholinergic receptors, right? In which there are two subdivisions of the cholinergic receptor. The first division is muscarinic receptor, which includes M1, M2, M3, M4 receptors. And the second uh, subtype of cholinergic receptor is nicotinic acetylcholine receptor, as the neurotransmitter of parasympathetic nervous system is acetylcholine. So that's why these are the nicotinic acetylcholine receptors. And there are two subtypes of the nicotinic receptor, NM, those are present at the neuromuscular junction, and NN, those are present at the neuron-neuron junction, which is actually ganglia, right? Okay. First, before we go into the details of the parasympathetic nervous system, first, you people should know about some basics. And those basics are 4 points. सबसे पहला पॉइंट क्या है, गैंग्लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, गैंग्लिया, राइट। गैंग्लिया होता क्या है, गैंग्लिया इज बेसिकली collection of cell bodies, cell bodies in peripheral nervous system, PNS, as you people have already studied this। ऐसे हमने कहा था ये गैंग्लिया, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, और फिर वो कम्युनिकेट करती हैं आगे दूसरे न्यूरॉन के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस। लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस। एक तो न्यूक्लियस होता है सेल का, राइट। लेकिन ये वाला जो न्यूक्लियस है, इट इज रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दिस न्यूक्लियस is basically collection of cell bodies in the central nervous system, right? क्या, collection of cell bodies in central nervous system, CNS। तो क्या मतलब है, अगर, लिसन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तो collection of cell bodies हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कब बनता है, जब न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आ जाए तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन जाता है। तो अगर collection of cell bodies हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है, ये देखो, ये यहाँ पे collection of cell bodies है, तो ये यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम गैंग्लिया कह देते हैं। लेकिन वही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज अगर ब्रेन के अंदर हो या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, राइट। ओके, ये सेकंड पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज ट्रैक्ट। क्या है, ट्रैक्ट। या पहले हम प्लेक्सिस की बात करते हैं, ट्रैक्ट बाद में सीखो। प्लेक्सिस, PLEXUS, प्लेक्सिस क्या होता है, इट इज द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर, बंडल ऑफ नर्व फाइबर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये एक न्यूरॉन जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह के साथ एक और न्यूरॉन जा रहा है, इस तरह ये बंडल बांध रहा है, ये देखो ये बंडल बांध रहा है ये। एंड इफ दिस बंडल, अगर इसको मैं कंप्लीट एक बंडल क्या दूं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेक्सिस ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेक्सिस ऑफ न्यूरॉन। लेकिन शर्त क्या है, इट शुड बी इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट शुड बी इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या है, ट्रैक्ट इज द बंडल ऑफ नर्व या न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बंडल ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर, न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 4 पॉइंट्स आप लोग याद रखें। गैंग्लिया क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्लेक्सिस क्या होता है, और ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद बंडल ऑफ नर्व फाइबर, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को उसको प्लेक्सिस कहते हैं, और वही बंडल ऑफ नर्व फाइबर या न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसको ट्रैक्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। First the parasympathetic nervous system, जैसे कि आप शक्ल में नजर आ रहा है, राइट। ओके, एज पीपल कैन सी हियर द डायग्राम, राइट। देखो ये आपको ब्रेन का पार्ट नजर आ रहा है, पहले ये ब्रेन का पार्ट नजर आ रहा है, ये देखो ये आपको ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है ब्रेन का, ठीक है। ये फिर आपको नीचे मिड ब्रेन, फिर नीचे हाइंड ब्रेन, फिर आपको पता है इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो जो ऑटोनॉमिक, जो पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको भी मैं अगर यहाँ ऊपर एक्सप्लेन करूँ, क्या, पूरा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको भी ब्रेन के हायर सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता है, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कंट्रोल करता है, और ब्रेन स्टेम भी कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम भी कंट्रोल करता है, क्या, गौर से सुने आप लोग। अगर मैं कहूँ कि इसको सेरिब्रल सेरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब ये अपना जो सिग्नल होता है वो इन सेंटर से भी लेता है, ठीक है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस, इसके अलावा हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद ब्रेन स्टेम, उसके बाद क्या है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लिम्बिक सिस्टम, उसके बाद क्या है, लिम्बिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनता तब है जैसे ही न्यूरॉन्स इन डिफरेंट ब्रेन के पोर्शन के, जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाहर आते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सारे पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, ये सारे, और इस ऑटोनॉमिक के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका होता है, इन पार्ट्स का होता है इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको ये नजर आ रहा है एक पोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये अंदर डिफरेंट और पार्ट्स ब्रेन के नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको नीचे और पार्ट्स, नीचे वाले हाइंड ब्रेन और ब्रेन स्टेम और ये सारी चीजें नजर आ रही है, ठीक है। अब गौर से सुनना है, अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ना 4 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये देखो, ये एक ब्लैक ब्लैक डॉट है, ठीक है। फिर इसी तरह आपको, फिर इस तरह एक ये ब्लैक डॉट डॉट है, फिर उस तरह एक ये ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है, फिर ये ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक। तो ये डिफरेंट ब्रेन के अंदर ये डिफरेंट सेंटर्स हैं, और ये क्या है बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है किधर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और उन कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को हम न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और फिर उन न्यूक्लियस के नाम है डिफरेंट, क्या है, उन न्यूक्लियस के डिफरेंट नाम है। जिस तरह भी ये अभी आप लोग ध्यान में रखें, मैं चलिए ये देखें, ये आप लोग को नजर आ रहा है, जो सबसे पहले वाला आपको ये डॉट नजर आ रहा है, ये इसका नाम क्या है आप लोगों ने नोट करना है। द फर्स्ट न्यूक्लियस दैट इज बेसिकली गोइंग टू कंट्रोल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। पहला का नाम क्या है, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। फिर जो दूसरा है उसको क्या कहते हैं, सुपीरियर सुपीरियर साल्वेटोरी न्यूक्लियस, ये दूसरा डॉट है, राइट। फिर उसके बाद तीसरा डॉट है उसको क्या कहते हैं, इंफीरियर साल्वेटरी न्यूक्लियस, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है थ्रू ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर है सारे, ये सारे न्यूक्लियस की तरह ब्रेन के अंदर। फिर चौथा आपको डॉट नजर आ रहा है, इट इज आल्सो न्यूक्लियस, और इसको क्या नाम है, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस। इसका क्या नाम है, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस। तो ये 4 ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, सॉरी न्यूक्लियस हैं, ये 4 ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और आपको पता है हमने पढ़ा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक, इस स्लाइड के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे ये देखें आप लोग, तो वो क्रेनियल और सैक्रल रीजन से कंट्रोल होते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ लिया था। तो ये जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, ये यहाँ से इन न्यूक्लियस के थ्रू जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, ये देखो ये न्यूरॉन निकल रहा है, ये यहाँ पे इधर आ रहा है, फिर एक यहाँ से एक ये न्यूरॉन निकल रहा है, फिर यहाँ से न्यूरॉन निकल रहा है, फिर यहाँ से न्यूरॉन। तो ये जो सारे न्यूरॉन्स निकल रहे हैं ये क्रेनियल रीजन के न्यूरॉन्स हैं। ये कौन से क्रेनियल रीजन के। फिर आप लोग नीचे आ जाए जरा, ये सारा स्पाइनल कॉर्ड है,
सारा क्या स्पाइनल कॉर्ड है। और ये देखो एंड पे कौन सा रीजन आ गया, सैक्रल रीजन। एंड पे कौन सा रीजन है, सैक्रल। और फिर यहाँ से भी कुछ न्यूरॉन निकल रहे हैं जो डिफरेंट रीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। अब ये जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है पहला, ये फर्स्ट न्यूरॉन दैट इज द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। इससे जो न्यूरॉन निकल रहा है सबसे पहले, ठीक है, वो आता है यहाँ पे और एक गैंग्लिया बनाता है। आपको पता है ना, जब न्यूरॉन निकलते हैं तो पहले गैंग्लिया बनता है, ये देखो। तो वो जो गैंग्लिया बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिलरी गैंग्लिया। उसको क्या बोलते हैं, सिलरी गैंग्लिया। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिलरी गैंग्लिया से ये जो पहले ब्लैक कलर का न्यूरॉन आ रहा है, ये कौन सा है, ये बेसिकली है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कि गैंग्लिया से पहले का जो न्यूरॉन है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, अब क्रीनियल रीजन में सबसे पहले जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है वहां से एक न्यूरॉन निकलता है और वो एक गैंग्लिया बनाता है। कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, आपको पता है। और उस गैंग्लिया का नाम क्या है, सिलरी गैंग्लिया, CILIA, सिलरी गैंग्लिया। अब यहाँ पे हर गैंग्लिया का नाम होगा। पहले हमने जनरल पढ़ा था कि जब फाइबर्स निकलते हैं तो गैंग्लिया बनाते हैं। अब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के केस में जो गैंग्लिया होगा उसका नाम होगा, उसका नाम क्या है, सिलरी गैंग्लिया। फिर उससे आगे आपको ब्लू कलर के न्यूरॉन नजर आ रहे हैं, ये यहाँ से निकलते हैं। और ये कौन से हैं, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, क्योंकि गैंग्लिया के बाद से ये स्टार्ट होता है, ये ब्लू कलर के न्यूरॉन। और फिर ये डिफरेंट ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं। और ये कौन सा ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, इसमें आई होगा, इसमें ग्लैंड्स होंगे, इसमें और चीजें होंगी। तो ये जाता है सबसे पहले आई के ऊपर। ठीक है, और कल हमने ये पढ़ लिया था इस स्लाइड के अंदर। अच्छा, अब ये जो न्यूरॉन, अच्छा उससे पहले बिफोर वी गो इनटू द ऑर्गन, ये जो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है, ये जो ये जो एडिंगर वेस्टफॉल, क्या, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो न्यूरॉन निकल रहा है, ये बेसिकली आपने नर्व्स पढ़ी हो ना, देयर आर डिफरेंट पेयर ऑफ 12 पेयर ऑफ नर्व्स जो कि आपने पढ़े हैं। तो उनमें से ये जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो ये न्यूरॉन निकल रहा है, ये बेसिकली थर्ड क्रेनियल नर्व है। ये क्या है, ये बेसिकली थर्ड क्रेनियल नर्व है, जिसको क्या कहते हैं, एक्यूलोमोटर नर्व। इसका नाम क्या है, इस नर्व का क्या नाम है, एक्यूलोमोटर नर्व। क्या नाम है, एक्यूलो 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 एक्यूलोमोटर नर्व है, जिसको हम क्या कहते हैं, CN का क्या मतलब होता है, क्रीनियल नर्व नंबर थर्ड है ये। और इसका नाम क्या है, नाम भी याद रखना आप लोगों ने। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो नर्व निकल रही है उसको क्या कहते हैं, एक्यूलोमोटर नर्व, दैट इज क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड। और वो जाती है, ठीक है, और वो सबसे पहले जो गैंग्लिया बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, सिलरी गैंग्लिया। और फिर उससे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं। और उससे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं वो सबसे पहले आई की तरफ जाते हैं, इधर जाते हैं आई। अब ये नजर भी आ रहा है यहाँ पे कि ये आपको नजर आ रहा है पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द सर्कुलर मसल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कल पढ़ा था, ये देखो इस डायग्राम के अंदर, ये देखो कल हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे M3 रिसेप्टर है। ठीक है, और ये जो M3 रिसेप्टर ये पैरासिम्पथेटिक के कंट्रोल में है। और ये M3 रिसेप्टर काम करते हैं सर्कुलर मसल के ऊपर, और ये कंट्रैक्ट करके म्योसिस कराते हैं और प्यूपल का साइज कम करवा देते हैं। प्यूपल का साइज क्या करवा देते हैं, कम। तो इसके अंदर भी यही है, ये देखो गौर से, ये जाते हैं आई के ऊपर। ठीक है, आई के ऊपर जाते हैं, वहां पे सर्कुलर मसल को एक्टिवेट करते हैं। और इन सर्कुलर मसल के ऊपर क्या है, M3 रिसेप्टर्स। क्या है, M3 रिसेप्टर्स। उनको जब एक्टिवेट करते हैं तो मायोसिस होती है। यहाँ पे फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं साथ साथ, यू विल हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मियोसिस, डिक्रीज इन प्यूपल साइज, ये सर नीचे लिखा हुआ है, डिक्रीज इन द प्यूपल साइज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल। ठीक है, क्योंकि M3 यहाँ पे आपको पता है GQ सिस्टम के साथ लिंक है। कौन से सिस्टम के साथ लिंक है, GQ सिस्टम के साथ। जब GQ सिस्टम के साथ लिंक है तो ये यहाँ पे सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा के प्यूपल के साइज को कम करवा दे यहाँ। तो याद रखना आप लोगों ने कि जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो प्यूपल के साइज को कम करवाएगा बाय कॉन्ट्रैक्टिंग दी सर्कुलर मसल ऑफ द आई, राइट, ओके। फिर इसी तरह एक और न्यूरॉन निकलता है यहाँ से, ये, और ये किधर जाता है, ये लेंस के ऊपर जाता है। ये किधर जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो लेंस के ऊपर, ये भी कल मैंने समझाया था। और लेंस में आपको पता है सिलरी मसल के ऊपर M3 रिसेप्टर है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, आगे की तरफ मूव करता है। ये देखो मैंने कल वाले डायग्राम के अंदर समझाया था, ये देखो ये यहाँ पे ये वाला है। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जो कि ये है, ये जो अकोमोडेशन में है, तो ये किधर मूव करते हैं, ऐसे। तो जो सस्पेंसिव लिगामेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ढीले। लेंस क्या हो जाता है, ग्लोबुलर। और अकोमोडेशन किसके लिए हो जाती है, नियर विजन के लिए। अकोमोडेशन किसके लिए हो जाती है, नियर विजन के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे M3 रिसेप्टर ऑन हो जाएंगे, यहाँ पे इन दोनों पे, यहाँ पे M3 रिसेप्टर होते हैं दोनों जगह पे, इधर भी M3, जो कि बल्कि साथ डायग्राम में बना भी हुआ है, ये देखो, और यहाँ पे भी है। तो ये लेंस को इस तरफ मूव करवाएंगे। ठीक है, तो लेंस क्या हो जाएगा, ग्लोब्यूलर। और ये अकोमोडेशन किसके लिए हो जाएगी, नियर विजन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि, अब मैं इसको रिपीट करने लगा दोबारा से, और से बैठे हैं आप लोग, कि यहाँ से सबसे पहले जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है, यहाँ से जो थर्ड किलोमोटर नर्व निकलती है वो गैंग्लिया बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलरी गैंग्लिया। और उसके बाद फिर क्या होता है, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं एक, जो कि प्यूपल के ऊपर जाता है। वहाँ पे M3 रिसेप्टर होती है, M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और उनको
जब M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो वो सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिससे क्या होता है, प्यूपल का साइज डिक्रीज होता है। इट मींस दैट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो प्यूपल का साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। प्यूपल का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस। फिर उसके बाद एक और फाइबर निकलता है, एक और फाइबर निकलता है जो किधर जाता है, सिलरी मसल के ऊपर। किधर जाता है, सिलरी मसल के ऊपर। सिलरी मसल के ऊपर जाता है और वहाँ पे M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से जो सिलरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, ग्लोब्यूलर, मोर फ्लैट हो जाता है। सॉरी, यस, लेस फ्लैट, सॉरी, क्या हो जाता है, लेस फ्लैट। लेस फ्लैट का क्या, अच्छा ये देखो, फ्लैट होने का क्या मतलब है, ऐसे फ्लैट होता है, ऐसे। और ग्लोब्यूलर होने का क्या मतलब है, ऐसे ग्लोब्यूलर होता है, ऐसे। ये पैरासिम्पैथेटिक केस में होता है और ये सिम्पैथेटिक केस में होता है। ठीक है, तो जब पैरासिम्पैथेटिक केस होता है तो ये ग्लोब्यूलर हो जाता है, और जब सिम्पैथेटिक केस होता है तो ये क्या होता है, फ्लैट। तो यहाँ पे अब ये ग्लोब्यूलर आपको नजर आता है। जब ये ग्लोब्यूलर होता है तो ये नियर विजन के लिए अकोमोडेशन हो जाती है। कल वाले एक्चुअली मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो अकोमोडेशन किसके लिए हो जाएगी, नियर विजन के लिए। इफ एनीबॉडी ही और शी हैज एनी क्वेश्चन तो वो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल हो किसी का यहाँ तक। अभी हमने फर्स्ट पढ़ा है न्यूक्लियस, दैट इज एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज द as we have already discussed the oculomotor nerve, which is the third cranial nerve, right? Okay, next is the uh, seventh cranial nerve. आगे वाली कौन सी है, सेवंथ क्रेनियल नर्व है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेशियल नर्व। ये कौन सी, फेशियल नर्व है ये। जो कि निकल कहाँ से रही है, ये है फेशियल नर्व, ये। ठीक है, और ये कहाँ से निकले, सुपीरियर साल्वेटरी न्यूक्लियस से निकले। इट इज गोइंग टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुपीरियर साल्वेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे गैंग्लिया बनाती है। और ये है कौन सा नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 7, विच इज फेशियल नर्व एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म गैंग्लिया। इस तरह हर न्यूरॉन के अंदर ऐसे ही होता है। ठीक है, इधर भी हर न्यूरॉन में ऐसे, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, जो भी पढ़ो ऑलरेडी। ये ऊपर वाले गैंग्लिया में भी ऐसे ही है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, फिर वो आगे रिसेप्टर होंगे, राइट। और फिर ये इस तरह आगे चलते जाएगा। अच्छा, अब ये जो गैंग्लिया बनाती है इसको क्या कहते हैं, ट्रीगोपैलेटाइन, क्या नाम है, ट्रीगोपैलेटाइन गैंग्लिया। ठीक है, और ये बेसिकली इनर्वेट किसको हो रहा है, अभी इधर देखते हैं आप लोग, ये देखो, ये जा रही है आगे, पोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इधर जा रहा है। यू विल हैव टू से वेयर दिस फाइबर इज गोइंग। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ तक है, फिर ये कुछ इसके न्यूरॉन इधर ऊपर चले गए हैं, कुछ इधर चले गए हैं, और कुछ यहाँ पे चले गए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर किधर गए हैं, लैक्रिमल ग्लैंड की तरफ। ये देखो, इधर लैक्रिमल ग्लैंड की तरफ चले गए हैं। ये देखो, आई लैक्रिमल ग्लैंड। और ये लैक्रिमल ग्लैंड से क्या करवाएगा, सिक्रेशन को क्या करवाएगा, ज्यादा प्रमोट टीयर प्रोडक्शन। कैसे, M3 रिसेप्टर होंगे यहाँ पे। और ये सारे जो मसल होते हैं, जैसे लैक्रि जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है, तो ये स्मूथ मसल से मिलकर बने हुए सारे ग्लैंड किस चीज से मिलकर बने हुए, स्मूथ मसल से। तो ये जब इनके ऊपर M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये अपनी सिक्रेशन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह इनमें से एक न्यूरॉन, एक इधर इधर आ रहा है, देखो यहाँ पे, और ये किधर आ रहा है, नेजल ग्लैंड की तरफ, और प्रमोट नेजल सेक्रेशन। इधर भी M3 रिसेप्टर है, ये देखो, ये नाक के जो ग्लैंड्स हैं इनको नेजल ग्लैंड्स कहते हैं, तो यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, और ये नेजल ग्लैंड, ठीक है, को एक्टिवेट करके तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, उनको क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होता है, नेजल सेक्रेशन बढ़ जाती है। बिकॉज हियर लिसन, वी आर हियर इन केस ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और यू कैन से ग्रीड और ब्रीड सिचुएशन, मतलब अभी हम रेस्ट में। तो ये हमारे सिक्रीशन ज्यादा होती हैं जब हम पैरासिम्पैथेटिक, जब हम नॉर्मल है, इस बात सिक्रीशन ज्यादा होगी ताकि एक्टिविटीज बढ़े सिक्रीशन की। फिर उसके बाद इसमें कुछ न्यूरॉन आते हैं इधर सिलेवरी ग्लैंड्स की तरफ। ठीक है, जिस तरह की आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स का बताया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद सब लिगुअल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पैलेटाइन ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे इन इन सब पे भी क्या होते हैं, M3 रिसेप्टर्स। और ये जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये अपनी सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है, बिफोर वी गो, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है सर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। वैसे तो हम ये मैकेनिज्म पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है। जी, जो M3 रिसेप्टर्स हैं, यू पीपल ऑलरेडी नो एंड यू पीपल हैव टू रिमेंबर। आपको पता है M3 रिसेप्टर है वो GQ सिस्टम। M3 रिसेप्टर का क्या है, GQ सिस्टम है। ठीक है, फिर उसको आपको पता है इसके बाद फॉस्फोलाइपेज C बीटा, ये आपने सारा मैकेनिज्म ऑलरेडी नो। फिर उसके बाद क्या होता है, PIP2। फिर उसके बाद क्या होता है, दो सिचुएशन में, IP3, सॉरी यहाँ पर डैग को लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डैग डाई असाइल ग्लाइसरॉल है।
फिर उसके बाद IP3। ठीक है। डैग आगे क्या करता है, PKC को एक्टिवेट करता है, फिर एक परफॉर्म फंक्शन आगे हर ऑर्गन के लिहाज से डिफरेंट होगा। तो आपको पता है IP3 क्या करवाता है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, इंक्रीज कैल्शियम लेवल। ठीक है, फिर क्या बताए, कैल्शियम और कैलमोडुलिन और कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर ये आगे रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, आपको पता है इसका काम क्या होता है कैल्शियम कैलमोडुलिन का, ये ML बायोसिन लाइट चेन MLC के से फॉस्फेट को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, रिमूव करते हैं फॉस्फेट इसमें से। ठीक हो गया। फिर एक और भी मैकेनिज्म है, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। तो आपको पता है कि जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज में से फॉस्फेट निकलता है तो ये एक्टिवेट होकर क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिवेट होकर क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। फिर इसी तरह यू पीपल हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरह ये जो कैल्शियम कैलमोडुलिन है, ये आप लोग समझ लो ये एक पाथवे है। फिर इसी तरह कैल्शियम कैलमोडुलिन जो है, ये वो जो आपको पता है आपने नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे पढ़ा था, वो भी एक्टिवेट हो सकता है यहाँ से। कैल्शियम कैलमोडुलिन उसको भी एक्टिवेट करता है, कैसे, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, ENOS को, एनाथ्रिल नाइट्रोसेशन। ये क्या करेगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। गुआनाइल साइक्लेज क्या करेगा, साइक्लिक GMP का लेवल ज्यादा कर देगा, और ये क्या करवा देगा, PKG को एक्टिवेट कर देगा, और ये क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, किसकी, MLCK की। और ये क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और देन देयर विल बी रिलैक्सेशन। यहाँ से इंपॉर्टेंट है चीज़, यहाँ पे आप लोगों ने, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। फिर इसी तरह एक और भी पाथवे है, ये दूसरा पाथवे मैंने बताया आप लोगों को, ये दूसरा पाथवे, पाथवे नंबर 2। इसी तरह एक पाथवे नंबर 3 भी है, कुछ कुछ जगह पर वो होगा। कौन सा, ये जो कैल्शियम है ना, इसकी कुछ कुछ जगह पे वेरी इंपॉर्टेंट, वो आगे आएगा, आप लोगों ने ध्यान से बैठना कि ये जो कैल्शियम है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ सेल्स के ऊपर एक्टिवेट्स, दिस कैल्शियम एक्टिवेट्स कैल्शियम डिपेंडेंट डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल। ठीक है, जिससे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, और ये क्या होगा, रिलैक्सेशन और इनहिबिशन, इनहिबिशन होगा। ठीक हो गया, तो ये 3 पाथवे हैं। ठीक है, पहला ये है, दूसरा और ये है तीसरा, ये आप लोगों ने तीनों चेंज रखना, राइट। अब हम भी आ जाते हैं। अभी जब हम ये देखो, जब हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे M3 रिसेप्टर है, यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर, यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों जगह पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन वाला पाथवे चलेगा, ये देखो ये वाला पाथवे चलेगा, पाथवे ये वाला पाथवे, पाथवे नंबर 1। तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अभी देखो आप लोगों ने इधर ही बैठना होगा, और से कभी कभी रिलैक्सेशन भी होगी किसी किसी जगह पे। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद एक और न्यूक्लियस है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर साल्वेटरी न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर साल्वेटरी न्यूक्लियस। और ये क्या करता है, ये यहाँ पे गैंग्लिया में आता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑटिक गैंग्लिया। ये क्या कहते हैं, ऑटिक गैंग्लिया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एसिटाइल को रिलीज होगी। और अच्छा, और ये जो नर्व है इसको क्या कहते हैं, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। ये नर्व नंबर 9 है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोसो 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 ग्लोसोफ्रिंजियल ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। क्या नाम है, फ्रेंजियल नर्व। क्या नाम है, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। और ये कौन सी है, ये क्रेनियल नर्व नंबर 9 है। कौन सी है, क्रेनियल नर्व नंबर 9, ग्लोसोफ्रिंजियल, क्या नाम है, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर रिलीज करती है, और यहाँ से इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जाता है किधर, पैरोटिड ग्लैंड्स। ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड आर प्रेजेंट बिहाइंड द ईयर्स, ये कानों के पीछे करके होते हैं, नीचे करके। और ये पैरोटिड ग्लैंड्स की सिक्रीशन को ज्यादा करती है बाय M3 रिसेप्टर्स, और कैसे, कौन सा पाथवे चलेगा, दिस पाथवे विल बी फॉलोड, कौन सा जी, ये वाला ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन, दिस पाथवे विल बी फॉलोड। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये इधर खत्म हो गया, फिर उसके बाद ये जो आखिरी वाला न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। इसका क्या नाम है, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ठीक हो गया। और ये वेगस नर्व है, ये कौन सी है, वेगस नर्व।
और ये नर्व नंबर कौन सी है, 10। इसको क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व नंबर 10 है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली जो नर्व है ना, ये 75% पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ये कंट्रोल करती है, मतलब ज्यादा सारे ऑर्गन इससे कंट्रोल होती है। 75% इसकी जो है ना वो contribution in parasympathetic system. It is 75%. It has 75% contribution in the normal activity of the parasympathetic nervous system. And this nerve, vagus nerve, is not going to form any ganglia, but is this nerve basically forms plexus. As we have already know, plexus is the bundle of nerve fibers in the peripheral nervous system, right? तो यहाँ पे फिर डिफरेंट नाम बन जाते हैं किसके, उन प्लेक्सिस के। जिस तरह अब यहाँ पे कोई गैंग्लिया नहीं बनता वेगस नर्व में, और यहाँ से डिफरेंट प्लेक्सिस बनते हैं। जिस तरह यहाँ से यहाँ तक ये आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आई है, फिर इससे आगे न्यूरॉन्स के बंडल निकलेंगे। इसमें से एक बंडल जो है ना वो इधर आएगा, ये वाला बंडल इधर आ रहा है, किधर, हार्ट की तरफ। वो बंडल किधर आ रहा है, हार्ट की तरफ। और ये हार्ट पे जो है आपको पता है, वो जो प्लेक्सिस आ रहा है उसका नाम है, उसको कहते हैं कार्डियक प्लेक्सिस। उसको क्या कहते हैं, कार्डियक प्लेक्सिस। उसको क्या कहते हैं, कार्डियक प्लेक्सिस। कार्डियक प्लेक्सिस जो कि दिल की तरफ आ रहा है। और दिल की तरफ आके क्या करता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपको पता है यहाँ पे ये एस नोड है, ये क्या है, एस नोड। और एस नोड के ऊपर ये क्या करवाते हैं, M2 रिसेप्टर। लिसन एंड रिमेंबर, हार्ट के ऊपर कौन सा रिसेप्टर, M2। बाकी अभी हम M3 की बात कर रहे थे, M3, ठीक है। लेकिन हार्ट के ऊपर कौन सी, M2। क्यों, क्योंकि जब हम रेस्ट और डाइजेस्ट में होते हैं तो हमारी हार्ट रेट क्या होती है, बिकॉज इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट रेट क्या होती है, कम होती है। और आपको पता है M2 रिसेप्टर जो है ना, M2 रिसेप्टर आपको पता है, दीज आर लिंक्ड विद द GI। और GI में आपको पता है एक तो पी के एक लेवल्स कम हो जाएंगे। याद करो जो CVS में जब हमने पढ़ा था कि किस तरह कार्डियक सेल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पे भी वही है। इंपल्स को जनरेट करना उसमें भी रोल होगा रिसेप्टर का, और कॉन्ट्रैक्शन कराने में भी रोल होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे GI सिस्टम होगा तो सारा सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा, नो इनफ्लक्स ऑफ आयंस। आपको पता है इंपल्स, ये यहाँ से इंपल्स को कैसे जनरेट करते हैं, जब आयंस की एंट्री होती है। कौन से, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन। कौन से आयन, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन, राइट। जिस तरह हमने CVS के कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म में पढ़ा था। तो ये इंपल्स यहाँ से एस नोड कब जनरेट करेगा, जब आयंस की एंट्री होगी। तो आयंस की एंट्री कब होगी, जब प्रोटीन काइनेज एक लेवल ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि ये M2 रिसेप्टर है, जो है M2, तो यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। अब देखो आपको पता है M2 रिसेप्टर में GI है, तो आपको पता है यहाँ पे बीटा और गामा का भी रोल होता है। अब यहाँ पे मैं चीजें ना आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है बीटा और गामा का भी रोल होता है GI में। तो वो क्या करता है, हाइपर पोलराइजेशन। इसका मतलब है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के केस में M2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और उसका GI सिस्टम है, बीटा और गामा सब यूनिट्स हैं, वो हाइपर पोलराइजेशन करवा देंगे ऐसे नोड की, जिससे इंपल्सिस काम जनरेट होगी। और एक और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका ना हार्ट के ऊपर, हार्ट रेट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट है। कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है वेंट्रिकल्स के कंट्रोल में होती है, तो पैरासिम्पैथेटिक का ज्यादा डोमिनेंस जो है ना वो हार्ट रेट के ऊपर होता है। और हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करते हैं, ऐसे नोड कंट्रोल करते हैं। तो आप लोग इस तरह याद रखना है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके जो ज्यादा फाइबर्स है ना वो एसए नोड के ऊपर होते हैं और एबी नोड के ऊपर। आपको पता है ये एबी नोड है, तो ज्यादा फाइबर्स किसके ऊपर होते हैं, एसए नोड के ऊपर और एबी नोड के ऊपर। वेंट्रिकल के ऊपर बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इससे साबित क्या हुआ, इससे साबित ये हुआ कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर है, हार्ट रेट के ऊपर है। और उसको कंट्रोल करते हैं M2 रिसेप्टर। उसको कौन कंट्रोल करते हैं, M2 रिसेप्टर। जब ये M2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी by hyperpolarization, by decreasing the entry of the positively charged ions like sodium and calcium, as we have already know in case of mechanism of contraction of the cardiac। और उसके अलावा आप लोग सीरियस फिजियोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, ऐसे नोड का में किस तरह जो है वो उसका एक्शन पोटेंशियल होता है और वेंट्रिकल का कैसे होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे नोड वाले की बात कर रहे हैं जो कि इधर होते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे साथ क्या लिखा हुआ है, ऐसे नोड डिक्रीज द हार्ट रेट एंड कंट्रैक्शन ऑफ द मायोसाइट्स, ठीक हो गया। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के केस में जो हार्ट होता है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है बाय M2 रिसेप्टर, याद रखना आप लोग। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे एक सीलियक प्लेक्सिस होता है। क्या होता है सीलियक प्लेक्सिस, वो क्या करता है, वो किडनी की तरफ जाता है। वो क्या कहता है, किडनी की तरफ। और ये यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। क्या करता है, यूरिन प्रोडक्शन। और कैसे यूरिन प्रोडक्शन को ज्यादा करता है, यहाँ पे M3 रिसेप्टर होते हैं। कहाँ पे, रेनल आर्टरी के ऊपर। किधर होते हैं, these M3 receptors are present on the renal artery, renal artery, ठीक है। और उसको ये डायलेट करते हैं M3 डायलेट। जाहिर सी बात है, जब डायलेट होगी रेनल आर्टरी थ्रू ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसको डायलेट कैसे करते हैं, ब्लड वेसल के ऊपर है, ये वाला पाथवे फॉलो होगा यहाँ। नो हियर दिस पाथवे विल बी फॉलोड, कौन सा वाला, ये वाला पाथवे नंबर सेकंड विल बी फॉलोड। ब्लड वेसल के ऊपर ये क्या करेंगे, इसको डायलेट करवा देंगे, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यूरिन प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ब्लड ज्यादा आ रहा है किडनी की तरफ। इनके तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा यहाँ से कुछ फाइबर आते हैं जो इंटेस्टाइन की तरफ, और यहाँ पे क्या करवाते हैं, इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल। और ये ज्यादातर अपर पोर्शन है, ज्यादातर अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन को और तो ये जो है ना वो सैक्रल रीजन कंट्रोल करता है, ये हम डाउन द रोड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपर पोर्शन को जो सीलियक गैंग्लिया से न्यूरॉन्स आ रहे हैं, जो कि निकल कहाँ से रहे हैं, वेगस नर्व का पार्ट है। किसका पार्ट है, वेगस नर्व का, उधर से आ रहे हैं। और ये जो अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को, और मेजरली लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल करते हैं, उस एक्टिविटी को ज्यादा करते हैं। फिर उसके अलावा
पल्मोनरी प्लेक्सिस है, और क्या हो गया पल्मोनरी प्लेक्सिस। ये देखो पल्मोनरी प्लेक्सिस है, निकल कहाँ से रहा है, वेगस नर्व ही है ये सारे जो प्लेक्सिस है ना, ये वेगस नर्व का पार्ट है। ठीक है, पल्मोनरी प्लेक्सिस ये किधर जाता है, लंग्स की तरफ, और ये M3 रिसेप्टर को वहां पे एक्टिवेट करके लंग्स में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ये देखो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। क्यों, क्योंकि हम रेस्ट में हैं, हमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल पूरी पूरी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये आपको पता है, देखो ब्रोंको अगर इतने हो तो ऑक्सीजन का एक लेवल आ रहा है। ठीक है, अगर ये डायलेट हो जाए तो ज्यादा आएगा, ये ब्रोंको डायलेट हो जाए इस तरह तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। और वो किस सिचुएशन में होती है, सिम्पथेटिक सिस्टम के केस में, जब हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं, ताकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है उस टाइम पे, क्योंकि बॉडी ने परफॉर्मेंस ज्यादा करनी होती है, क्योंकि क्राइसिस में है। लेकिन अभी तो क्राइसिस में नहीं है, अभी तो कम ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए ये M3 रिसेप्टर्स को क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा के रखते हैं। किसको, ब्रोंकियल स्मूथ मसल, जिससे ब्रोंक्यूल का ल्यूमन काम हो जाता है। और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा, दिस मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन वाला ऊपर। फर्स्ट फर्स्ट मैकेनिज्म विल बी फॉलोड हियर, ये देखो ये वाला दिस पाथ है कॉन्ट्रैक्शन वाला। देखो मैं आपको बड़ी डिटेल से चीजें बता रहा हूँ, यू पीपल हैव टू रिमेंबर दिस ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर किसी को कोई सवाल कोई बात समझ नहीं आ रही, शी कैन आस्क एट दैट इंस्टेंट मूवमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से एक और प्लेक्सिस निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, एसोफिजियल प्लेक्सिस। कहाँ से निकल रहा है, वेगस नर्व से। कहाँ से निकल रहा है, वेगस नर्व से। कहाँ से निकल रहा है, वेगस नर्व से। ओके, नेक्स्ट इज द एसोफिजियल प्लेक्सिस, राइट, लाइक पल्मोनरी प्लेक्सिस। एसोफिजियल प्लेक्सिस जो है ये क्या करते हैं, एज नेम एसोफेगस की तरफ जाता है। ठीक है, और आपको पता है एसोफेगस जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये फूड को लेके जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी M3 रिसेप्टर होते हैं, इसके ऊपर भी क्या है, M3 रिसेप्टर। अब आपको पता है M3 रिसेप्टर GQ सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब ये पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करवाएगी डाउन द रोड टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, और ये जो है ना वो इंक्रीज JIT मोटिलिटी करेगी, क्या करेगी, JIT मोटिलिटी को ज्यादा करेगा। कौन, M3 रिसेप्टर, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल है। और फिर लिखा है इंक्रीज HCl प्रोडक्शन। इफ यू पीपल रिमेंबर द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HCl, इफ यू पीपल रिमेंबर, तो हमने क्या कहा था, वहां पे पाराइटल सेल के ऊपर M3 रिसेप्टर्स थे, जिनको कौन एक्टिवेट करा था, एसिटाइलकोलिन। हु वाज गोइंग टू एक्टिवेट दीस रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन। फिर आपको पता था कि वहां पे M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होते थे। ठीक है, फिर आपको पता है सारा GQ सिस्टम चलता था वहां पे, तो वो GQ सिस्टम आगे जाके किसको एक्टिवेट करता था। अब मैं इसको यहाँ पे बाईपास कर रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली लास्ट पे लिख रहा हूँ कि वहां पे पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम पंप था। वहां पे क्या था, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, जिसको इस GQ सिस्टम ने एक्टिवेट किया था, जिससे क्या हुआ था, HCl की प्रोडक्शन हुई। किसकी प्रोडक्शन हुई थी, HCl की, राइट। तो यहाँ पे स्टमक के अंदर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम HCl की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक हो गया, ओके। एंड दिस मैकेनिज्म यू पीपल ऑलरेडी नो, एज वी हैव डिस्कस इन केस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द हिपैटिक प्लेक्सिस। क्या, इसी तरह जिस तरह के अदर प्लेक्सिस निकल रहे हैं, इस तरह फिर एक हिपैटिक प्लेक्सिस निकलता है। फिर क्या निकलता है, हिपैटिक प्लेक्सिस, जो कि देखो यहाँ से निकल रहा है, ये देखो हिपैटिक प्लेक्सिस, ये निकल कर वेगस नर्व से, और जा किधर है, लीवर के अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है, लीवर के अंदर। और ये आप लोग को नजर आ रहा है लीवर के अंदर, ये क्या प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस, लिटिल लिटिल, तो कहते हैं लिटिल प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस, थोड़ी लेकिन करता है। फिर उसके अलावा आपको पता है ये गाल ब्लैडर है, ये क्या है, गाल ब्लैडर। तो आपको पता है गाल ब्लैडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी बाइल एसिड, यहाँ पे बाइल बनता है। फिर इसको भेजना होता है हमने किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और फिर जो आपको पैंक्रियाज नजर आ रहा है, यहाँ से भी पैंक्रियाटिक सेक्रेशन भी इसमें ऐड होती है। और ये यहाँ पे कहाँ पे जाके ड्रेन होती है जी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जो ड्यूडिनल पोर्शन है, उसके अंदर ये सारी सेक्रेशन ड्रेन होती है। और इसके ऊपर यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर है, यहाँ पे ये जो ब्लैडर, सॉरी ब्लैडर का सॉरी, गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर नहीं, गाल ब्लैडर है ये, पित्ता जिसको हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी M3 रिसेप्टर है, GQ सिस्टम के थ्रू, ये वाला, ये जो हमने सिस्टम पढ़ा है, ये कॉन्ट्रैक्शन, दिस पाथ है कॉन्ट्रैक्शन, राइट। फिर उसके बाद ये अपनी सिक्रीशन जब बना लेता है ना, इसके अंदर जब सिक्रीशन बन जाती है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर, ठीक है, जो ये यहाँ से जो आपको एक डक्ट निकलती हुई नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। ये देखो सिस्टिक डक्ट, जो कि कहाँ से निकल रही है, गाल ब्लैडर से। फिर उसके बाद अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट कहाँ से निकल रही है, लीवर से। और फिर ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बनाती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और फिर ये डक्ट जो है वो सिस्टिक डक्ट के साथ मिल जाती है। ये देखो यहाँ पे कॉमन हो गई इस पॉइंट पे, ये दोनों कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये दोनों देखो इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, मतलब इसमें गाल ब्लैडर की सिक्रेशन भी आ रही है और लीवर की भी आ रही है, दोनों कंबाइन हो रही हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ से पैंक्रियाज की सिक्रेशन भी मिल जाती है इसके अंदर से, ये देखो। और ये क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये जो आप अंदर ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, और ये जो इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं, मतलब इसके अंदर कॉमन बाइल डक्ट जो कि गाल ब्लैडर और लीवर से आ रही है, और दूसरी जो पैंक्रियाज से आ रही है, ये वाली,
ये दोनों मिला के इसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ वाटर। ये किस चीज का कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट which is going to form ampulla of Vater, which is ultimately going to be drained into the duodenum of the intestine or small intestine, or duodenum of the small intestine, or the duodenum of the small, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ Vater। ये इसको, ये जो डक्ट बनती है, फिर ये जिस स्फिंक्टर के थ्रू ओपन होती है उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये देखो इधर लिखा हुआ है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या बोलते हैं इसको, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी कैसे ओपन होता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू। और ये ओपन होता है बाय दिस पाथवे। ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये वाला पाथवे नंबर 2, राइट। पाथवे नंबर पाथवे नंबर कौन सा, 2 से ये मतलब देखो कैल्माटोनिन कैल्शियम कार्बोनेट के बाद ईएनओएस पाथवे स्टार्ट हो जाता है। फिर वो इसको रिलैक्स करवा देता है, किसको, स्फिंक्टर को। किसको, अब यहाँ पे स्फिंक्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्फिंक्टर की। और इस स्फिंक्टर का नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो कि यहाँ पर है, जो कि एम्प्यूला ऑफ वैटर की जो सेक्रेशन है, किसकी, एम्प्यूला ऑफ वैटर की जो सेक्रेशन है उसको ड्रेन करता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर ये यहाँ पे क्या करता है, जाके डाइजेशन करता है खुराक की, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये था सारा इसका मैकेनिज्म, कॉमन बाइल डक्ट का, और बाइल डक्ट, और हिपैटिक डक्ट, और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये राइट। फिर उसके बाद अभी हमने यहाँ पे ये मैकेनिज्म देखा कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है। क्या हो रही है, ग्लाइकोजेनेसिस। इसका मैकेनिज्म आप लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हो रही है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लीवर, ठीक है। देखो लीवर के ऊपर भी M3 रिसेप्टर्स हैं, M3 रिसेप्टर्स, ठीक हो गया, M3। और इन्होंने क्या करवाना है, ग्लाइकोजेनेसिस। M3 रिसेप्टर्स हैं, आपको पता है सारा मैकेनिज्म चलेगा आगे अंदर। अब यहाँ पे GQ सिस्टम सारा, अब उसमें बाईपास करके आगे कैम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच जाते हैं, किधर, कैम कॉम्प्लेक्स। अब कैम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, लिसन एंड रिमेंबर, यहाँ पे एंजाइम होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, हियर इज एन एंजाइम, एंड द नेम ऑफ एंजाइम इज ग्लाइकोजन सिंथेज। क्या नाम है, ग्लाइकोजन। अच्छा, उसका काम क्या होता है, वो ग्लूकोज से क्या, ग्लूकोज से क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है। क्या बनाता है, ग्लाइकोजन, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोजन स्टोर ऑफ ग्लूकोज। तो एंजाइम क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोजन सिंथेज, GS। क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेज। क्या है, ग्लाइकोजन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये याद रखनी बात है, ग्लाइकोजन सिंथेज। अब याद रखना, आप लोगों को पता है हमने पहले एक एंजाइम पढ़ा हुआ मायोसिन लाइसिन काइनेज, जब उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ये भी उसी तरह का एंजाइम है, कौन सा, ग्लाइकोजन सिंथेज। मैं नीचे इसका पूरा नाम ही लिख रहा हूँ, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सिंथेज, राइट। अच्छा, अब जब इसकी भी फॉस्फोराइलेशन होती है तो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज में से फॉस्फेट निकाल देगा। तो ये क्या हो जाता है, जब ग्लाइकोजन सिंथेज में से एक फॉस्फेट निकलता है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव। इसका मतलब फिर ये ज्यादा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। और इस तरह ग्लाइकोजन की सेंसिस बढ़ती जाती है, मतलब ग्लूकोज पाइल अप होता जाता है किस में, लीवर के अंदर। और सिंपैथेटिक सिस्टम इसका उलट होगा, वहां पे जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होंगे वो इसको आके इनहिबिट कर देंगे इसकी फॉस्फोराइलेशन से, जिससे क्या होगा, ग्लाइकोजन सेंसिस इनएक्टिव हो जाएगा और ग्लाइकोजन की सेंसिस कम हो जाएगी। क्या मतलब, ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम सिंपैथेटिक सिस्टम होते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हम क्राइसिस में हमें एनर्जी चाहिए, तो वहां पे ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजन सेंसिस जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और ग्लाइकोजन की सेंसिस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये था लिवर के ऊपर इफेक्ट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब हम आ जाते हैं नीचे। अब ये देखो एंड पर है हमारे पास सैक्रल रीजन, और उसमें से S2 S3 और S4 में से न्यूरॉन निकल रहे हैं, और यहाँ पे भी कोई गैंग्लिया नहीं बनता। ये न्यूरॉन डायरेक्ट इनर्वेट करते हैं जाकर किसको, ब्लैडर को। किसको, ब्लैडर को। और यहाँ पे भी आप लोगों ने कुछ चीजें याद रखनी, ब्लैडर, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर है ये, ठीक है। अब इस ये जो यूरिनरी ब्लैडर, आपको पता है हम रेस्ट और डाइजेस्ट में वी वांट टू यूरिनेट, तो ये क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये यूरिनेशन को प्रमोट करता है। और यहाँ पे दो किस्म की चीजें, एक ये ब्लैडर है, ये ऊपर 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 वाला पोर्शन, जिसके अंदर यहाँ पे यूरिन की कलेक्शन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे स्फिंक्टर होता है जो कि यूरिन को होल्ड करके रखता है, जो कि क्या करता है, यूरिन को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे मसल होते हैं अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और उन मसल को हम क्या कहते हैं, डेट्रूजर मसल। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। ट्राइगोन, ये देखो लिखो ट्राइगोन। अब यहाँ पे जहर सी बात है, ट्राइगोन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ट्राइगोन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स होता है। अब यहाँ पे एक कमाल की बात है, वो क्या, इधर भी M3 रिसेप्टर है, यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर है, और वो क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर बॉडी। और जो यहाँ पे M3 रिसेप्टर है वो कहाँ पर है, स्फिंक्टर के ऊपर, और वो रिलैक्सेशन कराते हैं। वो क्या कराते हैं, रिलैक्सेशन किसकी, जो स्फिंक्टर है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, जो कि यूरिन को होल्ड करता है। लेकिन अब तो हमें यूरिनेट करना है, अभी तो हमें क्या चाहिए, जो ब्लैडर की बॉडी है वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में चाहिए, और जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स फॉर्म में चाहिए। तो जो यहाँ पे M3 रिसेप्टर है
वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा मैकेनिज्म? दिस पाथवे। पाथवे नंबर वन, पाथवे नंबर वन विल बी फॉलोड, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन जो रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर वो ये वाला पाथवे फॉलो करता है। पाथवे नंबर थ्री, ये देखो, एक्टिवेट कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल, जिससे क्या होगी? हाइपरपोलराइजेशन, और क्या हो जाएगा? स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। तो ब्लैडर के केस में है दोनों जगह पे M3 रिसेप्टर्स। एट बोथ प्लेसेस देयर आर M3 रिसेप्टर, बट एट वन प्लेस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन, राइट। लेकिन जो स्फिंक्टर है वहां पे क्या होगा? स्फिंक्टर विल बी रिलैक्स बाय द कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल मैकेनिज्म। उससे क्या होगा? पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होंगे, हाइपरपोलराइजेशन, स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा, राइट। तो ये था ब्लैडर। और ये कहाँ से इसकी सप्लाई आ रही है? ये सैक्रल रीजन से आ रही है। अब जो क्रेनियल रीजन था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, वेगस नर्व के बाद। वेगस नर्व के बाद जब वो रीजन खत्म हो जाता है, अब वो नीचे वाला सैक्रल रीजन शुरू हो जाता है, जो कि लोअर बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जिससे आपको पता है जो ये वाला पार्ट है ये लोअर पार्ट में आता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम, अच्छा, उसके बाद कुछ पोर्शन जो है इसका, ये लोअर पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन की तरफ भी जाता है, यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे स्फिंक्टर को भी ये रिलैक्स करता है, जो एनल स्फिंक्टर होता है, जाहिर सी बात है जब हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स करते हैं तो वहाँ पे भी M3 रिसेप्टर है, और वहाँ पे भी रिलैक्सेशन वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। और जब यहाँ पे, और जो यहाँ पे M3 रिसेप्टर है लार्ज इंटेस्टाइन पे, वो कंट्रैक्शन करवा के तो जो फिशेज होते हैं उसको प्रोपेल करते हैं आगे टुवर्ड्स द रेक्टल पोर्शन। ठीक हो गया? तो यहाँ पे वही वाला मैकेनिज्म चलेगा। अब हम आए थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसमें से भी मेजर, आप ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको बताइए ओवरीज है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ठीक है, और ये वजाइनल कैविटी है, जिसमें ये सिर्विक्स है, ये आपको यूट्रस नजर आ रहा है। ठीक हो गया? अब ये यहाँ पे क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो इंक्रीज ब्लड फ्लो करता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो बाय बाय इंक्रीजिंग द और बाय एक्टिवेटिंग M3 रिसेप्टर्स ऑन यूट्रस, क्योंकि यूट्रस के ऊपर है। वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, ताकि जो है वो जब पीरियड्स चल रहे होते हैं उस टाइम भी ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा के ना यूट्रस को, तो जो यहाँ पे डेब्री होती है उसको रिमूव करवा देते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है। फिर उसके अलावा जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही होती है तो ये उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि जो अगर स्पर्म जो इधर से आ रहे हैं उनको यहाँ पे रिटेन करके उनको ओवरीज के अंदर भेजा जा सके, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं उस टाइम, ताकि जो स्पर्म आ रहे हैं उनको रिटेन किया जाए यहाँ पे, ठीक है। एक ये है। दूसरा, यहाँ पे क्लाइटोरस को ये क्या करते हैं? इनगोर्जमेंट करते हैं, मतलब उसको ऐसे एक्टिवेट करते हैं टू गेट द प्लेयर ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। ये क्लाइटोरस जो है ना वो उसको भी ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। ये किसमें रोल है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और वहाँ पे रिसेप्टर मेजर कौन से? M3 रिसेप्टर्स। और काम कैसे करते हैं? GQ सिस्टम, राइट। ओके, अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो हम बात करेंगे पीनस की, हम किसकी बात करेंगे? पीनस की। तो वहाँ पे भी ज्यादा रोल किसके ऊपर होता है? ब्लड सप्लाई के ऊपर। अब ये देखो, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं फीमेल, सॉरी, मेल ऑर्गन, ठीक है। ये फीमेल ऑर्गन है ये वाला, ठीक है। एक डायग्राम नंबर A है और एक डायग्राम नंबर B है, ये वाले, ठीक है। तो इसमें देखें, ये जो मेल पिनाइल या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इस फॉर्म में ऐसे, मतलब इट इज नॉट इन द इरेक्टेड फॉर्म, ये इरेक्टेड फॉर्म में नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इरेक्टेड फॉर्म है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, क्या है? जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या कहता है? पॉइंट एंड इरेक्ट, उसको इरेक्ट करने में उसकी मदद करता है। कैसे इरेक्ट करता है वो? अब यहाँ पे देखें आप लोग, ये जो आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। ये मसल होते हैं, ये क्या होता है? कॉर्पस कैवर्नोसम। तो अभी होता क्या है यहाँ पे ना ब्लड सप्लाई आ रही है, यहाँ पे ब्लड, ये आप समझ लीजिए आर्टरीज आ रही हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है? M3 रिसेप्टर है। और ये M3 रिसेप्टर जो है ना इन वेसल्स को डायलेट करते हैं। कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं? ये वाला पाथवे, सेकंड वाला, नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे को फॉलो करते हैं और इसको डायलेट करवाते हैं। जब डायलेट कराते हैं ना तो यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, मतलब ब्लड की अमाउंट बढ़ जाती है। जैसे ब्लड की अमाउंट बढ़ती है ना तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ पे प्रेशर। अच्छा, आप बहुत बात सुने, और जैसे बात है यहाँ से वेन्स भी जा रही हैं वापस, यहाँ से क्या है? वेन्स भी वापस जा रही हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे से वेन्स वापस जा रही होती है, यहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड जाता है। लेकिन जैसे आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको डोमिनेट करता है वाइल सेक्सुअल एक्टिविटी, तो यहाँ पे जो M3 रिसेप्टर ये ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर बन जाता है। जब प्रेशर बनता है ना तो ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है अब ये भी नीचे की तरफ दबाव डालता है, किसके ऊपर? वेन्स के ऊपर। अब वेन्स भी दब जाती हैं, जब वेन्स दबती है ना तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस जाना उसको मतलब दुश्वारी पैदा होती है, क्यों? क्योंकि कॉर्पस कैवर्नोसम फैल जाता है। जब कॉर्पस 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 या कॉर्पोरा या कॉर्पस कहते हैं इसको, कॉर्पस कैवर्नोसम जो है जब वो डायलेट करते हैं ना साथ ब्लड वेसल की वजह से, तो ये वेन्स दब जाती हैं। जब वेन्स दबती है ना यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, जिससे क्या होता है? जो मेल ऑर्गन है वो इरेक्ट हो जाता है, इस तरह स्ट्रेट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट
ड्यू टू स्क्वीजिंग ऑफ द वेन्स दोज आर अंडर द कॉर्पस कैवर्नोसम। ऊपर से देखिए, ऊपर से ब्लड ज्यादा आ रहा है लेकिन नीचे से ड्रेन नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब देखो सप्लाई आ रही है लेकिन ड्रेन नहीं हो रहा, तो जिस वजह से वहां पे प्रेशर जनरेट होता है और जो कॉर्पस कैवर्नोसम होता है वो उसकी जो है ना वो स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज वैसोडाइलेशन। और वो वैसोडाइलेशन किस वजह से हुई है? M3 रिसेप्टर्स की वजह से। ठीक है, और यहाँ नीचे वाले डायग्राम में भी ये दिखाया हुआ है, ये यहाँ भी ये देखो इरेक्टेड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस कैवर्नोसम ने वेन्स को स्क्वीज किया था जिस वजह से सप्लाई तो आ रही थी और वो भी ज्यादा आ रही थी क्योंकि आर्टरीज डायलेट हो गई हैं। ठीक है, तो जब वो डायलेट होती हैं तो नीचे वो कॉर्पस कैवर्नोसम भी है वो भी डायलेट होता है, वो फिर प्रेशर डालता है वेन्स के ऊपर। जब वेन्स के ऊपर प्रेशर डालता है तो ब्लड की ड्रेनेज खत्म हो जाती है जिस वजह से वहां पे प्रेशर जनरेट हो जाता है और वो ऑर्गन पूरा इरेक्ट हो जाता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्ट, मतलब गौर से सुनो, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो रोल है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो है मेल ऑर्गन को इरेक्ट करना और बाकी जो ग्लैंड्स है उनकी सिक्रीशन को बढ़ाना। और देखो इरेक्ट कैसे करना, ये वाला मैकेनिज्म होता है, कॉर्पस कैवर्नसम वाला मैकेनिज्म, जो कि अभी आप लोगों को मैंने समझाया है। अच्छा, फिर इसको और एक और दो बातें। तो सो विद दिस वी विल बी फिनिशिंग आवर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अच्छा, आपको पता है ना कि हमारा ये नर्व टर्मिनल होता है इस तरह, ऐसे। और ये पता है आपको, पता है एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है दो जगह पे, एक गैंग्लिया के ऊपर और एक ऑर्गन के ऊपर। फिर ये जो है ना, आपको पता है ये जो एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक। आपको पता है नीचे भी न्यूरॉन होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक। तो क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल। ये ऊपर वाला पोर्शन होता है। यहाँ पे भी M2 रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे M2 रिसेप्टर होते हैं। M2 रिसेप्टर्स देखो, अब ये मैं यार आप लोगों को पीछे अगर ये नर्व टर्मिनल में दिखाऊं तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये ये देखो, ये एक न्यूरॉन है ना, ये देखो ये एक वाला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है और ये इसको एक्टिवेट करके आगे इंपल्स को ले जाती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी इंपल्स जा रही है ना। तो ये देखो, ये जो ये वाला है ना, ये वाला न्यूरॉन, इसको हम क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल। ये पोस्ट है नीचे वाला, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। तो यहाँ पर भी M2 रिसेप्टर होते हैं। तो ये M2 रिसेप्टर क्या करते हैं? यहाँ पे जब एसिटाइलकोलिन मुकम्मल तौर पर रिलीज हो जाती है, जब इसकी अब जरूरत खत्म होती है, तो ये जो M2 रिसेप्टर है यहाँ पे प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे, ये वाले, ये एसिटाइलकोलिन के रिलीज को यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है M2 GI सिस्टम के साथ लिंक होते हैं। तो लिसन एंड रिमेंबर, M2 रिसेप्टर दो जगह पर है, आप लोगों ने अभी सुन लिया। एक तो प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे, किधर? प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल। और दूसरा कहाँ पे? हार्ट पे, ऐसे नोड के ऊपर थे। ये देखो यहाँ पे नीचे ऊपर, ये हार्ट पे, यहाँ पे ऐसे नोड के ऊपर। यहाँ पे हार्ट रेट को क्या करते थे? कम करते थे। और दूसरी दूसरे M2 रिसेप्टर कहाँ पे है? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। और वो अपने ही एसिटाइलकोलिन के रिलीज को कम करते हैं व्हेन एसिटाइलकोलिन इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर और व्हेन द एसिटाइलकोलिन हैज परफॉर्म इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर आपके ज़हन में सवाल आ सकता है, सर हमने M3 रिसेप्टर पढ़े हैं, M2 पढ़े हैं, M1 किधर है? M1 रिसेप्टर, तो जो M1 रिसेप्टर है ये ब्रेन के अंदर होते हैं। किधर? ब्रेन के अंदर। कहाँ पे? ब्रेन में। और ब्रेन में भी कहाँ पे? हिपोकैम्पस। किधर? हिपोकैम्पस। और हिपोकैम्पस में क्या होते हैं? M1 रिसेप्टर। और वहां पे क्या रोल प्ले करते हैं M1 रिसेप्टर? मेमोरी। किसमें? मेमोरी। मतलब हिपोकैम्पस। अच्छा, और वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा? एसिटाइलकोलिन। एसी